सभापति को भी है। तो यदि अगर इस सदन में हम संयम से काम नहीं करेंगे, सार्थकता से नहीं करेंगे, देश को हित को रखकर नहीं करेंगे और राजनीतिक तरीके से अपने दर्शन को परिभाषित करेंगे, तो राष्ट्रीय हित मेरे हिसाब से खतरे में पड़ेगा। मेरा आग्रह है सदन के नेता से, जो लोग वेल में आए, इस प्रवृत्ति को मैंने गंभीरता से लिया है और आज भी मैंने नजरअंदाज नहीं किया है, क्योंकि आपने कहा दरियादिली। इस विषय पर दरियादिली दिखाने का मतलब संविधान के निर्माताओं का अनादर करना। इससे बड़ा अपमान भारत की जनता का नहीं हो सकता कि जिनको भेजा गया वो सभापति के कहने के बावजूद और 3 सदस्यों ने जो विशेषकर आचरण किया है, उस आचरण पर यदि अगर आज सदन समय समाप्ति के पहले कोई निर्णय नहीं लेती है तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ये फर्क नहीं पड़ता कि संख्या क्या है, फर्क पड़ता है राष्ट्र हित के खिलाफ, सदन की मर्यादा के खिलाफ संख्या कुछ भी हो, कदम न उठाना एक ऐसा कमजोर व्यक्तित्व है परिभाषित करता है जो व्यक्ति को खुद को शर्म में डाल देता है। इसलिए मैंने दरियादिली नहीं दिखाई है। इन पर एक्शन हो और ये आज के लिए सस्पेंड हो। मैं मानकर चलता हूं कि इस विषय के ऊपर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे जो कदम विधिमत उठाने चाहिए उसी तरीके से संपादित हो। इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसकी जानकारी सभी को है। आई नाउ अलाउ डॉक्टर जॉन ब्रिटास to ask his supplementary number 1. Thank you, sir. I have returned after my walkout. Let me register here. Sir, I need your protection, sir. Sir, I need your protection. You told me that you will compensate. Please compensate in the form of protection. John, you are one of the very learned members. You seek protection of the chair because I will be leaving and sir, is coming. Yes, sir. So sir, protection of the chair you are seeking. Sir, hope, sir, he will also protect me and compensate me. Please put your question, John. Sir, you have to compensate, Chairman. Please. Sir, I am shocked at the answer given by the Minister of State. He has clearly contradicted the stand taken by the Cabinet Minister. Can the Minister of State contradict the statement of the Cabinet Minister? That's my first observation. While coming to the supplementary, sir, this is with regard to the assassination sentence given to one of the hapless Malayali women in Yemen. Keralites have been agitated over it. An action committee has been formed. Even Kerala government has written to the government of India. An honorable cabinet minister wrote to me on 27th February. He told me that the government is at it, and he said that I assure you that welfare of Indians abroad is of highest priority for government of India, and Ms. Nimisha Priya's case will continue to receive our full attention. This was the assurance given by the cabinet minister. Now see, sir, the answer given by the Minister of State. The matter regarding any consideration of release of Nimisha Priya is a matter between family of the deceased and Nimisha Priya's family. The government of India has washed off its hands. Can the government of India be that insensitive in a matter which agitate Keralites? Thank Mr. you. Suresh Gopi also Thank is you. there. He's with me. So my question, supplementary question is that, is it not a fact that the Action Committee had approached the government of India and arranged $40,000 through the MEA? I would like to point out that when the honourable member was saying that I have contradicted the cabinet minister,
So he read just part of the answer. So with your permission, may I continue with the other part which the honourable member Please. did not read, either knowingly or unknowingly. So the answer given to the House by the ministry clearly says in the second part that the government accords the highest priority for the welfare of Indians abroad and provides all possible support to those who fall in distress, including in the instant case. The Government of India, sir, is providing all possible assistance in this case. And the honourable member just mentioned. Please let him reply. Yes. I will. Sir, let me, please on. So the matter regarding any consideration to Priya is between the family of the deceased and Miss Nimishi Priya's family. Now, as the facts of the case go, sir, this lady in question has already been sentenced to death by the Supreme Court of Sana. She's already been sentenced to death. So the family approached us, and as the statement goes, we provided all possible assistance. We arranged for the mother, Miss Nimishi Priya, to go to Yemen, although there's a travel ban on that country. After that, as the honourable member pointed out, so the Government of India, so we arranged the transfer of $40,000 upon the written request of the family and facilitated the financial transfers as requested by the family to Sana. The money was transferred immediately after it was received in the ministry's account, and it was made available to the families. Now, the further process that is happening is obviously between the victim's family and the family of Ms. Nimishi Priya. So I would also like to impress on the August House and the honourable members, sir, that this is a very serious and sensitive matter. It deals with the life and death of an Indian national. And sir, it would, again, I like to underline this, that it would not be conducive to discuss the matter further, as the matter is highly sensitive, and it can also impact the outcome of the case and the efforts that are being made by Ms. Nimishi Priya's family. So, sir, these are regarding the assistance provided by Government of India, I would also like to state that following the initial conviction of Ms. Nimishi Priya in the trial court, we arranged a lawyer through the Indian Community Welfare Fund. He was paid through the ICWF for taking up her case in the higher courts in Yemen. The appointed lawyer contested the conviction in both the appeals court and the Supreme Court, and has also been in touch with the family and the power of attorney holder by the family. Sir, as a government, as a responsible government who takes care of its citizens, we have taken all possible measures, we have given all possible assistance in this matter, and it is now between any consideration, any discussion can only happen between the family of the deceased and Ms. Nimishi Priya's family. Thank you. John Brittasi, keeping the sensitivity of the matter, second supplementary briefly. Sir, I'm quite aware about the I know, nuances but in this put your case. second supplementary briefly, But keeping. I'm that afraid, sir, the Minister of State is either misguided or rather... Please put your question. Sir, my question. When he says that it is between these two families, deceased and Nimishi Priya's family, is it not a fact that, as per Yemeni's laws, the deceased family and Nimishi Priya's family cannot interact directly? That is Yemeni's law. You need to have a negotiator there, Honourable Minister. That is the law of Yemen. And further, sir, in these cases, blood money is important. That is the only solution to resolve this very burning issue. Sir, my last question. Thank you. There have been reports in the media that Nimishi Priya is under the custody of Houthi militia, and Iran government has offered facilitating release of Nimishi Priya. Is the government of India aware of it? It's very Has the government matter. of India worked on it? Very sensitive matter. Thank you. I know, sir. Please. Thank you. Thank you, sir. Sir, when the honourable member is talking about other countries, so I'd just like to state again that we are providing all possible assistance in this case. It is a highly sensitive matter,
and we have to take into account the safety and security of the person in question. So, further discussions, again, I'd say that can only impact the outcome. So, like I said before, this question... Please, no interruption, Mr. John Brittas. So, regarding the discussion between, as the Honourable Minister pointed out, as per the Yemeni laws, as the member pointed out, as per the Yemeni laws, so the family of Nishi Priya, they have appointed a power of attorney. And they have been given a lawyer with our assistance. And they're carrying out these assistance. They're carrying out the discussions. Thank you. Thank you, sir. Third supplementary, Mani Harris Biren, not present. Mr. Santosh Kumar Pei, nothing is going on record. John Brittas, please take. Mr. Santosh Kumar Pei, not present. Mr. Sanjeev Arora, not present. Mr. Ritabrat Banerjee, not present. Mr. A. Rahim, not present. So we'll move to question number 92. Manisri Babu Lal, Jason Bhai Desai. माननीय मंत्री जी, माननीय उपसभापति जी, मेरा प्रश्न नंबर। माननीय मंत्री जी, सभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। पहला सप्लीमेंट्री। माननीय उपसभापति जी, मेरा क्या सरकार यह स्पष्ट कर सकती है कि भूकंपीय गतिविधियों के मद्देनजर गुजरात के किन किन क्षेत्रों में, खास तौर पर कच्छ में विशेष रूप से प्रधानमंत्री द्वारा कौन से तकनीकी उपाय तथा सतर्कता बरती जा रही है और संभावित खतरों को कम करने के लिए कोई दीर्घकालिक उपाय लागू किए गए हैं? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा उठाए गए उपायों से लाभ हुआ है? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, माननीय सदस्य चूंकि गुजरात से आते हैं तो बड़ी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने ये प्रश्न रखा है, लेकिन साथ ही साथ गुजरात से इसका एक और भी ताल्लुक है। वैसे तो देखा जाए तो कुल मिलाकर के भूकंप की भविष्यवाणी 100% या 100% करना बहुत कठिन रहता है, लेकिन उसके बावजूद बाकी देशों की तुलना में भारत का प्रयास कहीं गुना अधिक है और इसमें प्रगति भी हुई है। और जब मैंने कहा कि इससे गुजरात का एक और भी ताल्लुक है, तो मेरा तात्पर्य ये था कि सबसे पहली बार जब वर्तमान प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो कच्छ में आए भूकंप के बाद देश में पहली बार नेशनल डिजास्टर या गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कल्पना उनके द्वारा लाई गई थी और पहली बार भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का यदि कोई गठन हुआ है तो गुजरात राज्य में हुआ। फिर उसी से प्रेरित होकर के 2005-06 में तत्कालीन केंद्रीय सरकार ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया। इसी प्रकार गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में पहली बार इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च का कॉन्सेप्ट लाया और उसकी स्थापना भी पहली बार गुजरात में हुई। और उसके उपरांत सन 2014 अगस्त के मास में जब वो प्रधानमंत्री बनकर के केंद्र में आए, तो उसी तर्ज पर केंद्र में भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च लाया गया। और अब जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है, गत 10 वर्षों में बड़ी तेज रफ्तार से, बड़ी तीव्र गति से इसमें प्रगति हुई है। उदाहरण के तौर पर हमारी जो सिस्मिक ऑब्जर्वेशंस रहती हैं, ऑब्जर्वेटरीज, जो कि भूकंप का अनुमान भी लगाती हैं, उसकी क्या मात्रा है वो भी तय करती हैं, प्रिपेयर्डनेस के लिए वो चेतावनी भी देती हैं, उनकी संख्या सन 2014 से पहले मात्र 80 थी और पिछले 10 वर्षों में, गत 10 वर्षों में 86 और जोड़ करके वर्तमान में 166 है। अर्थात 70 वर्ष में जितनी ऑब्जर्वेटरीज
इस देश में स्थापित की गई थी उससे अधिक गत 10 वर्षों में। और कच्छ में और भुज के क्षेत्र में जहां पर के इसकी संभावना अधिक रहती है, उसी प्रकार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में उसमें विशेष तवज्जो दी गई है। उदाहरण के तौर पर आज भी हमारा नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी इन क्षेत्रों पर विशेष नजर रखता है। यदि आप पूछें कि क्या प्रगति हुई है, तो सन 2016 में भारत की ओर से ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 पॉइंट एजेंडा रखा था। एशियन एक गोष्ठी हुई थी राजधानी दिल्ली में, जिसमें लगभग 39 देशों ने भाग लिया था। और उसके बाद कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का गठन किया गया। और सन 2047 को लेकर के जो विजन डॉक्यूमेंट भारत सरकार तैयार कर रही है, या जो विजन रखा गया है प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से, उसमें भूकंप की दृष्टि से अर्थक्वेक रिस्क रेसिलिएंट इंडिया बाय 2047 ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और 2021 से लेकर 2025 एक नए प्रयोग का भी इस्तेमाल किया गया, मॉक एक्सरसाइजेस, और उसमें विशेषकर भुज और कच्छ के क्षेत्र में ये एक्सरसाइजेस आरंभिक दौर में सन 2021 में की गई। इसके अतिरिक्त कुछ कच्छ और भुज के अनुभव के बाद देश भर में एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि रिट्रोफिटिंग के जो इमारतें कमजोर हैं या जो भूकंप वाले क्षेत्र में, अर्थक्वेक प्रोन क्षेत्र में, उनको किस तरह से उनको पुनः निर्माणित किया जा सके, उसके लिए इंश्योरेंस पूल भी बनाया गया। और विशेषकर गुजरात और अन्य क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया। और ये निरंतर प्रयास जारी है। इसका उत्तर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप में करता हूं। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री, माननीय बाबू भाई। क्या सरकार यह बता सकती है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में अस्पतालों, स्कूलों और पुलों जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक मजबूती के लिए कौन कौन से तकनीकी उपाय अपनाए जा रहे हैं? धन्यवाद। लगभग 59% भारत का क्षेत्र, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 59%, 60% इज अर्थक्वेक प्रोन। और इसलिए गत कुछ वर्षों में बिल्डिंग कोड कंप्लायंस के दस्तावेज तैयार किए गए कि इन क्षेत्रों में अगर निर्माण कार्य होना है, इमारतों का कंस्ट्रक्शन वर्क, तो उसके लिए क्या मापदंड रहेंगे, क्या उसके लिए प्रिकॉशंस भी रहेंगी और किस तरह के व्यवस्थाएं रहेंगी। इसी प्रकार पुरानी जो इमारतें हैं उनके निर्माण के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाए ताकि वो भूकंप के बावजूद भी जान और माल का नुकसान ना हो पाए और जितना अधिक सुरक्षित उन हम स्ट्रक्चर्स को रख सके। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंसर्न्स में जैसे माननीय सदस्य जी ने कहा कि अस्पतालों को लेकर के, उसमें भी मुझे ये बड़े संतोष होता है इस सदन के साथ ये बात साझा करते हुए कि एम्स नई दिल्ली और भुज क्षेत्र के अस्पताल वो देश के पहले ऐसे अस्पताल थे जिनको के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर्स के आधार पर पुनः रीस्ट्रक्चरिंग के उस योजना में, उस प्लान में लाया गया। और इसी तरह आने वाले समय में खास तौर से जो अस्पताल ही नहीं, जो बच्चों के लिए स्कूल की इमारतें हैं या इस प्रकार के और जो सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी पुनः निर्माणित करने के लिए या जो नई इमारतें बन रही हैं उनके लिए नए मापदंड स्थापित करने के लिए समय समय पर कार्य भी हो रहा है और एक आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, क्योंकि कहीं कहीं ये भी ध्यान में आया कि बहुत सारे लोग जिनकी इमारतें पुरानी हो चुकी थी उनको पुनः स्ट्रक्चरिंग करने में संकोच करते आर्थिक कारणों से, तो सरकार ने उस बात को भी बड़ी संवेदनशीलता से लिया है। बहुत धन्यवाद। थर्ड सप्लीमेंट्री, माननीय श्री आरपीएन सिंह महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं और नेपाल के अंतर्गत तमाम भूकंप आए हैं और हमें झटके
हर 3 महीने 6 महीने में पूर्वांचल और बिहार के तरफ ट्रेमर्स जिसको कहते हैं हम फील करते हैं। आपने अपने जवाब में साफ तौर से लिखा है कि हिमालयन रेंज में एक पायलट प्रोजेक्ट आप लोगों ने शुरू किया है जिसके अंतर्गत हमें अर्ली वार्निंग साइंस की वजह से पहले हम लोग को पता कुछ अर्ली वार्निंग साइंस हम लोग को मिल पाएगी। तो ये जो पायलट प्रोजेक्ट आपने हिमालयन कॉरिडोर पे कर रखा है, क्या इस हमारे क्षेत्र भी इससे प्रभावित होगी और कब तक इसके रिपोर्ट आ जाएंगे? माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है और ये भी गत एक वर्षों में ही संभव हो पाया इसी सरकार द्वारा कि ये जो क्षेत्र है, जैसे इन्होंने कहा कि हिमालयन बेल्ट, उसमें उत्तराखंड भी आता है, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग जैसे माननीय सदस्य जी ने कहा वो भी हैं, हिमाचल भी है, उनको लेकर के अर्ली वार्निंग सिस्टम की एक व्यवस्था निर्माणित की गई और साथ ही साथ डिजास्टर रिस्पांस ट्रेनिंग की एक अलग व्यवस्था, वहां पे जो भी संबंधित लोग हैं उनको भी और आम समाज को, आम नागरिकों के लिए भी। और इसके लिए बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम भी प्रारंभ किए गए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भूकंप की 100% भविष्यवाणी पहले से करना या एडवांस फोरकास्ट 100% इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल whichever the country, whichever the part of the world। और इसलिए अनेकों अलग अलग किस्म के कार्यक्रम, उदाहरण के तौर पर दूरदर्शन पर एक आपदा का सामना नाम का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, मॉक एक्सरसाइजेज की गई और 2019 में इसी सरकार ने होम ओनर्स गाइड फॉर अर्थक्वेक एंड साइक्लोन सेफ्टी लाया, ताकि जब भी आप प्लान करें वहां नई कंस्ट्रक्शन करने के लिए तो दैट कुड बी अ हैंडी बुक फॉर यू टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस, सर्टेन प्रिकॉशंस। इसी प्रकार 2021 में सिंप्लीफाइड गाइडलाइंस फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी, इस शीर्षक से एक अलग डॉक्यूमेंट पुस्तिका भी रचित की गई, which provides details about the statistical and the building infrastructure। 2016 में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, उसके तहत, और इसी तरह से हिमालयन रेंज के लिए जैसे इन्होंने कहा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम विशेषकर उन क्षेत्रों पर केंद्रित करके या उन क्षेत्रों पर फोकस करके प्रारंभ किया गया है। एक नई शुरुआत है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके अनुभव से इसमें और अधिक विकास भी किया जाएगा, वैल्यू एडिशन करने का भी प्रयास रहेगा। माननीय अशोक कुमार मित्तल, नॉट प्रेजेंट। श्रीमती एस फॉगनॉन कोन्या। Thank you, Deputy Chairman, sir. I'm grateful to the Ministry for developing an earthquake early warning system for the Himalayan region. Through you, I would like to ask the Honourable Minister if it covers Northeast region, which is a seismic 5 zone, and when will the pilot project being developed be completed? Thank you. Chairman, sir, I'm glad that the Honourable Member has raised a question about Northeast, which is very high on the priority of Prime Minister Modi as well as his government. And as far as the issue of earthquake is concerned, the early warning system, of course, as I was mentioning in response to the earlier question, in addition to the other earthquake regions, it also has a special focus for Northeast. In fact, we have installed observatories which are capable of recording the earthquake tremors of 3.0 and above on the Richter scale, because less than that sometimes may not be very significant. So that is an arrangement, whereas in some other regions it may be even more, 4 and above, but in case of Northeast it is 3.0 and above. Similarly, in the last few years, there has been such a high priority given both to the Northeast as well as to the issue of these natural calamities happening, that you would appreciate that even in the first 100 days of the third term of Prime Minister Modi, which is popularly described as Modi Government 3.0,
most of the important decisions taken by the government pertained either to Northeast or to the technological advancements related to all these issues. For example, related to this ministry itself, the Ministry of Earth Sciences, which deals with the earthquakes, Mission Mausam, for the first time, was launched by any government in India during the first 100 days of Modi government 3.0. And correspondingly, in the first 100 days itself, you had a decision to develop semiconductors and to earmark rupees 1,000 crore for space startups. So that creates an ecosystem which is primarily focusing on technological advancements to deal with these issues. Prime Minister Modi has himself paid as many as almost 70 visits to Northeast in the last 10 years. I think which is more than the total number of visits by all the preceding prime ministers, in spite of the fact that the immediate past prime minister happened to be a member from Northeast, though in the Rajya Sabha. So you can understand. And then at the same time, the ministers in the government were assigned to pay regular visits to Northeast. So every 15 days, there are at least 2 union ministers visiting Northeast, which is complete departure from what it was in the earlier times when a minister from the center visited Northeast, the newspapers would report a minister from India. So it has created not only the filling up of the physical gap, but also done away with the mental barriers. There was a time when the youth from Northeast, and I'm sure Honourable Member has been a witness to that because she's been a very prominent person there, youth from Northeast were hesitant to come even to the capital city of Delhi. There were so many cases registered against the inappropriate behavior. Today, Northeast children are seen in all the tourism industry, aviation industry. You take a flight, any part of the country you have. So it has created a lot of mainstreaming in the last 10 years. Thank you. Last supplementary, Mayank Bhai, Jaydev Bhai Nayak. सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भूकंप से बचने के लिए आधुनिक मशीनरी और तकनीकी केंद्र सरकार ने उपलब्ध करवाई है, मगर गुजरात में कभी-कभी 3 और 4 से तीव्रता वाले भूकंप के आ रहे हैं। ऐसे में कई जगह पे मकानों को निरंतर छोटे-छोटे भूकंप आने से वो मकान प्रभावित होते हैं। वो मकान के अगर इंश्योरेंस लिए गए तो वो इंश्योरेंस कंपनी वाले इस भूकंप के कारण इस मकान को नुकसान हुआ है वैसे मानने के लिए वो तैयार नहीं होते। सप्लीमेंट्री छोटा पूछिए। तो मंत्रालय के पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि इस समय में इतनी तीव्रता का भूकंप आया था, उसका वो सर्टिफिकेट लेके वो इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर सके, जिससे उसको जो इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है उसका भुगतान मिल सके। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने, माननीय सदस्य जी ने अपना जो बिंदु रखा है उस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन इसमें ये जोड़ दिया जाए कि इंश्योरेंस का प्रावधान भी इसी सरकार ने लाया और अगर उसकी प्रिसाइज बात की जाए तो उसका नाम रखा गया रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो एक रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म के तहत यदि भूकंप के परिणाम स्वरूप किसी इमारत में कोई दरार पड़ जाती है, क्रैक्स आते हैं, ये नुकसान होता है, तो एक मैकेनिज्म है उसकी असेसमेंट करने का कि किस हद तक किस मात्रा में हुआ है और फिर उसके अनुसार ये अपेक्षा की जाती है कि इंश्योरेंस की ओर से उनको उसका मुआवजा या कॉम्पनसेशन मिलेगा। यदि कोई स्पेसिफिक केस ऐसा है कि जहां इंश्योरेंस कंपनी ने, इंश्योरेंस की अधिकारियों ने उनके साथ सहयोग नहीं किया है तो उसकी जांच अलग से की जा सकती है, मगर कुल मिलाकर के इन जनरल वी हैव अ वेरी वाइब्रेंट सिस्टम इन प्लेस and this is also a very imaginative step taken by this government। और उसके तहत जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं अगर उनमें क्रैक आता है तो उनको फिर पुनः निर्माणित करने की भी व्यवस्था रहती है और जो नई बिल्डिंग्स हैं उनमें ये अपेक्षा की जाती है कि उनको नए मापदंड और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि कपल्ड होल इकोसिस्टम होम ओनर्स गाइड नाम का एक गाइड बुक भी हमने जारी किया है, सिंप्लीफाइड गाइडलाइंस भी की हैं। तो अपेक्षा की जाती है कि कंस्ट्रक्शन करने वाले जो अथॉरिटीज हैं, एजेंसीज हैं या कंट्रैक्टर है या जो प्राइवेट
व्यक्ति हैं वो उन गाइडलाइंस का पालन करें ताकि उस तरह की नौबत ही ना आए। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 93, डॉक्टर कल्पना सैनी। माननीय मंत्री जी, पहला सप्लीमेंट्री, डॉक्टर कल्पना जी, पहला सवाल। माननीय सभापति जी, मेरा प्रश्न है, क्या सरकार इस योजना की जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कोई विशेष अभियान चला रही है? विशेष रूप से महिला व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाली महिलाओं के लिए क्या कोई विशेष प्रोत्साहन योजना है? उप सभापति जी, मोदी सरकार ने देश के मध्यम वर्ग, देश के गरीब लोग, उसके पिछले लाइफ में सिक्योरिटी मिले, उसमें खास करके पेंशन सिक्योरिटी मिले, उसका एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिले, उसको हेल्थ सिक्योरिटी मिले और उसको फूड सिक्योरिटी मिले, उसके लिए अथाक प्रयास करा है। और ये प्रयास का परिणाम और नतीजा ये है कि आज देश में 920 मिलियन यानी कि 92 करोड़ लोग, यानी कि देश के कुल पॉपुलेशन का 65% पॉपुलेशन जो कोई न कोई एक या एक से अधिक उसको कोई न सिक्योरिटी मिली है। ये सोशल सिक्योरिटी के लाभ सामान्यतः 1919 से 3 प्रकार की योजना चालू करी गई थी। उसमें से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और नेशनल प्रधानमंत्री छोटे व्यापारियों के लिए सहाय योजना के तहत ये योजना का लाभ देश के छोटे व्यापारी या तो छोटे तबके के लोगों को मिलता है। ये योजना के तहत देश में आज तक कुल मिला के 60 लाख लोगों ने ये योजना में हिस्सा लिया है। ये योजना का प्रारूप है उप सभापति जी, जितना पैसा एक 18 एज से 14 एज तक वो जितना कंट्रीब्यूशन देता है, इतना ही कंट्रीब्यूशन सरकार की ओर से दिया जाता है और उसका लाभ लेके 60 साल के बाद उसको 3000 का एश्योर्ड पेंशन दिया जाता है। पेंशन आज के दिन में छोटे लोगों के लिए, छोटे काम करने वाले लोगों के लिए पिछली लाइफ में बहुत उपयोगी होता है और ये योजना देश में लागू है और अच्छी तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन करते हैं। हम नेशनल सभी स्टेट में सब विलेज लेवल पर जो कैरियर सर्विस पोर्टल है उसका भी उसको उपयोग करते हैं ताकि उसका लाभ उसको मिले और अपने स्वयं कोई भी व्यक्ति या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को या तो ये व्यापारियों को वेबसाइट पे जाके भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जनता ले सके। सेकंड सप्लीमेंट्री, डॉक्टर कल्पना सैनी जी। क्या सरकार इस योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए हेल्पलाइन, शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम या अन्य कोई विशेष पहल करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी विवरण क्या है? सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, ये योजना का एक्सपेंशन हो, ये योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले और उसकी पहुंच बढ़े, उसके लिए नंबर ऑफ टाइप के प्रशिक्षण वर्ग भी चलाया जाता है। डिजिटली भी हम प्रयास करते हैं और डिजिटली अवेयरनेस का कार्यक्रम भी चलाते हैं। अलग अलग टाइप के एडवर्टाइजमेंट की ओर से भी इस योजना का प्रचार प्रसार करते हैं ताकि लोग इस योजना के साथ जुड़ के उसका महत्तम से महत्तम लाभ ले सके। धन्यवाद। माननीय रामजी लाल सुमन, थर्ड सप्लीमेंट्री, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री अशोक कुमार मित्तल, नॉट प्रेजेंट। माननीय सुलता देव जी, नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर वी शिवदासन जी, नॉट प्रेजेंट। So third supplementary goes to श्रीमती ममता मोहंता। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जैसे कि हम सभी जानते हैं वर्तमान सरकार ने समाज के हर वर्ग के विकास के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई है और माननीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ग और हर समाज के लोग के विकास के लिए चिंतित रहते हैं। क्या राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई व्यवस्था की गई है और ओडिशा राज्य में इस राष्ट्रीय पेंशन स्कीम को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं? धन्यवाद। उप सभापति जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है
कि पेंशन स्कीम और उसका विस्तार बढ़ाना और उड़ीसा में भी उसका लाभ मिलना, पेंशन स्कीम और अलग अलग टाइप की स्कीम जो लोगों को सोशल सिक्योरिटी देती है। ये गवर्नमेंट ने पहली बार फूड सिक्योरिटी के द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे के फूड सिक्योरिटी प्रदान की। यही सरकार ने, माननीय उपसभापति जी, बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब के यहाँ भी आती है और अमीर के यहाँ भी आती है। जब कोई अमीर के यहाँ, पैसेदार व्यक्ति के यहाँ बीमारी आती है तो उसके जेब में पैसा होता है, वो इलाज करवा लेते हैं। लेकिन कोई गरीब व्यक्ति के यहाँ जब बीमारी आ जाती है तब उसके बहुत दिक्कत होती है, पैसा नहीं होता है। और इसलिए मोदी जी ने कहा था कि देश में कोई भी गरीब परिवार के व्यक्ति बिना दवाई से, बिना ट्रीटमेंट से उसके यहाँ मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। उसमें से आयुष्मान भारत योजना निकली, वो हेल्थ सिक्योरिटी है। आज देश में 60 करोड़ लोगों को 5 लाख की मुफ्त इलाज की गारंटी दी गई है। पिछले बजट में अनाउंसमेंट हुआ 70 एबव से अधिक एज वाले सभी बुजुर्ग लोगों को भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाया गया। और इस चालू बजट में भी अनाउंसमेंट करा गया, जो गिग वर्कर्स है, छोटे लोग हैं, जो हर दिन एक एग्रीगेटर्स के अंडर में काम करता है, ये लोगों को भी आयुष्मान भारत योजना में लाया जाएगा। तो कुल मिला के वो 65 करोड़ लोगों को एक टाइप की हेल्थ सिक्योरिटी भी हो जाएगी। उसके अलावा जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ प्रश्न पूछा गया कि बुजुर्ग लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, ये लोगों को के लिए भी उसको भी सोशल सिक्योरिटी मिले, उसको भी पेंशन मिले, उसके लिए भी व्यवस्था है। और उनके लिए नेशनल विडो पेंशन स्कीम चल रही है और नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम चल रही है। कुल मिला के आज मुझे उपसभापति जी बताते हुए खुशी हो रही है, केवल एक दशक पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 18% लोगों को सोशल सिक्योरिटी दी गई थी जो पेंशनेबल हो। आज मोदी गवर्नमेंट ने 48% लोगों को, जिसको कोई न कोई कैश के रूप में सोशल सिक्योरिटी मिलती है, उसका प्रावधान करा गया है। उसमें से हम स्टेट को इंक्लूड नहीं करते हैं, कई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कई टाइप की सोशल सिक्योरिटी दी गई है, उसमें फूड सिक्योरिटी इंक्लूड नहीं है। जो फूड सिक्योरिटी इंक्लूड हो जाती तो देश में 48 में से 65% लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने वाला कोई देश है, ये देश का नाम भारत है, जो इतना बड़ा देश में 92 मिलियन 92 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है। अगला सप्लीमेंट्री श्री अनिल सुखदेव राव बोंडे। माननीय अनिल सुखदेव राव बोंडे। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये स्कीम बहुत ही अच्छी है। जिनका इनकम कम है, व्यापारियों के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए 18 से 40 तक उनको पैसे भरने पड़ते और 60 के बाद में पेंशन मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है कि उसकी मृत्यु 60 के पहले हुई तो जो भरे हुए पैसे हैं वो उनको रिटर्न होते हैं क्या? और दूसरी बात, स्पाउस और चिल्ड्रन, जो माइनर चिल्ड्रन है, उनको वो पेंशन का लाभ एडल्ट होने तक मिलता है क्या? धन्यवाद। उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। एनपीएस ट्रेडर्स जो नाने छोटे मोटे कारोबारी है और ये पेंशन में इंक्लूड है, तो उसका स्पेसिफिक क्वेश्चन है और कि भाई उसकी एज 60 ईयर्स से पहले हो गई तो उसको क्या होगा? उसके एज 60 ईयर के पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो विथ इंटरेस्ट उसको पैसा मिल सकता है। उसका पाउस है, उसको भी 50% पेंशन मिल सकता है। और शायद कई बार 10 साल के बाद वो जो उससे विड्रॉ हो जाना चाहते हैं तो विड्रॉ होने की भी उसको सुविधा उससे मिलती है। उसमें बैंकेबल इंटरेस्ट के साथ वो विड्रॉ हो सकते हैं। एकदम फ्लेक्सिबल स्कीम है। ये स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले, इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं ताकि पिछले लाइफ में उसको सोशल सिक्योरिटी मिले। 60 साल के बाद वो रिटायर कर गए हो, छोटे लोग हो, 3000 रुपया उसका जीवन का आधार बन सके, इस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री जी ने ये योजना लाई थी और आज 60 लाख से अधिक लोग उसका लाभ ले चुके हैं और ज़्यादा लोग लाभ ले, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। लास्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर सिकंदर कुमार। माननीय डॉक्टर सिकंदर कुमार। For giving me the opportunity.
With your permission, I would like to know from the Honorable Minister that how an individual gets a national pension scheme and how many individuals registered under national pension scheme in our country. Thank you. थैंक यू। माननीय मंत्री जी। उप सभापति जी, नेशनल पेंशन स्कीम कई टाइप की है। हर टाइप की स्कीम में अलग अलग लाभार्थी है। प्रधानमंत्री जी ने श्रमिक लोग हैं, जो छोटे मजदूर लोग हैं, जो अभी हमने स्पेसिफिक प्रश्न था एनपीएस स्टेटस पर, उसका विवरण करा। वैसा ही प्रधानमंत्री श्रमिक मानधन योजना है। ये छोटे और गरीब तबके के लोग जो कोई न कोई जगह पे इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, ऐसे लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिले, उनके लिए भी प्रधानमंत्री मानधन योजना चल रही है। ये योजना में भी आज तक उसमें भी 45 लाख से अधिक लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और उसमें भी 3000 पेंशन उसको 60 साल के बाद मिलता है। उसमें एक अच्छी व्यवस्था है कि ये किसी के यहाँ घर पे काम करते हैं तो उनके बिहाफ वो भी उस जहाँ काम करते हैं वो उसमें पेंशन जमा करा दे। कोई एग्रीगेटर्स के अंडर में काम करते हैं तो वो भी वहाँ पे पैसा जमा करा दे, या तो कोई कंपनी है और उसके यहाँ कोई सफाई करने वाले हैं या कोई और लोग काम करते हैं, उसके बिहाफ पे कंपनी भी उसका कंट्रीब्यूशन दे दे या तो स्वयं कंट्रीब्यूशन दे। तो ये सभी पैसा, जितना पैसा लाभार्थी जमा करते हैं इतना ही पैसा मोदी गवर्नमेंट की ओर से डाला जाता है। तो उससे भी ऐसे लोगों को भी 60 साल के बाद उसको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, उसको भी 3000 रुपया पेंशन मिलता है। वैसे ईपीएफओ में जो एनरोलमेंट होते हैं उसके भी लाभार्थी, उसको तो ऑलरेडी पेंशन मिल रहा है। ऐसे लोगों की संख्या 78,000 से 80 लाख के आगे पीछे है। वैसे ही अटल पेंशन योजना है। अटल पेंशन योजना भी सभी के लिए ओपन है। अटल पेंशन योजना में भी आज तक 5.55 करोड़ लोग अटल पेंशन योजना के साथ जुड़े हुए हैं। और अटल पेंशन योजना उपसभापति जी वो 3000 से 5000 तक की पेंशन सिक्योरिटी देते हैं और उसमें अलग अलग एज में अलग अलग कंट्रीब्यूशन उसको देना होता है। और जितना कंट्रीब्यूशन राज्य सरकार देगी इतना ही कंट्रीब्यूशन, जितना कंट्रीब्यूशन लाभार्थी देगा उसमें भारत सरकार की ओर से भी मदद की जाती है। तो कुल मिला के ये सभी योजना से हम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को छोड़ दे तो मोटा 5 करोड़ से अधिक लोग जिसको पेंशन मिले, 60 साल के बाद पेंशन मिले, इस प्रकार की व्यवस्था आज के दिन में उपलब्ध हो चुकी है। और भविष्य में उसको कॉम्प्रिहेंसिव रूप में टोटल एक अम्ब्रेला के नीचे सारी स्कीम का लाभ मिले और लोग भी उसमें जुड़े और अपनी पिछली लाइफ को सिक्योर करें, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 94 माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी, नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी पटल पे रख दिया जाए। पहला सप्लीमेंट्री माननीय मिलिंद देवड़ा जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर कुछ ही दिन पहले चीन में बेजिंग का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस थिएटर है, उस थिएटर का नाम है शुंडी ग्रैंड थिएटर। उस थिएटर में उन्होंने मैंडरिन भाषा में रामायण का पहला बड़ा मंचन आयोजित किया। ये मैं मानता हूं कि भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत ही बड़ी एक सांस्कृतिक और डिप्लोमेटिक जीत है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा और प्रश्न पूछना चाहूंगा कि डज द मिनिस्ट्री हैव एनी प्लान्स टू टेक रामायण, महाभारत, आवर क्लासिक आर्ट्स, म्यूजिक, लिटरेचर टू द फार ईस्ट, to East Asia, to Southeast Asia, where there is a huge influence of our culture on these regions. धन्यवाद। हालांकि विषय है इंक्रोचमेंट ऑफ द बर्थ प्लेस ऑफ म्यूजिक मैस्ट्रो तानसेन। प्लीज माननीय मंत्री जी चाहे तो जवाब दे सकते हैं। जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, जैसे आपने फरमाया विषय म्यूजिक मैस्ट्रो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिक मैस्ट्रो तानसेन के विषय के अंदर है। जो सवाल सप्लीमेंट्री तौर के ऊपर पूछा गया है उसके अंदर तंत्र है और मैं समझता हूं हर एक मुल्क का
ये प्रयास रहता है कि उसकी छवि, उसके एपिक्स और मुल्कों तक पहुंचाए जाएं। किस जरिए पहुंचाए जाएं उसके ऊपर विचार किया जा सकता है, लेकिन पहुंचाने की आवश्यकता मैं समझता हूं कि आज की सरकार के अंदर, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के अंदर इसको प्राथमिकता दी जाती है और आपका अच्छा सुझाव है, इसको हम कंसिडर जरूर करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर अजीत गोपछड़े जी, विषय मैंने आपको बता दिया, क्या सवाल? इसी से संबंध है, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति पे आक्रमण हो रहा है, उसी के बारे में बता रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति पर एक आक्रमण अभी हो रहा है, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया के माध्यम से। सवाल कुछ और है। नहीं, वही है विषय नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ये युवक और युवती के ऊपर एक सांस्कृतिक सवाल है एनक्रोचमेंट ऑफ द बर्थप्लेस ऑफ म्यूजिक कार्यक्रम, इसमें हमारे माता पिता के बारे में गलत कहा जा रहा है। नहीं जाएगा, वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा रिकॉर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 95, बैठ जाए आप, रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, आक्रमण हो जाएगा। प्लीज टेक योर सीट। क्वेश्चन नंबर 95, माननीय श्री राजीव शुक्ल, नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी। Statement is laid on the table of the House. फर्स्ट सप्लीमेंट्री, माननीय सुजीत कुमार जी। Chairman sir, since the 1950s, China has been illegally squatting on 36,000 square kilometers of our land in Aksai Chin. Largely sir, because of the incompetence and ineptitude handling of the government of the day and the then Prime Minister. Sir, but because Aksai Chin is an integral part of India, we show it now in maps. And Bangladesh also has been showing both Aksai Chin and Arunachal in its map since 1971. But recently, sir, Chinese government has asked Bangladesh not to show Aksai Chin and Arunachal in its map. So, sir, is the ministry going to do something about it? And this has happened after the change of government in Bangladesh. So, sir, we should intervene and tell Bangladesh government in no uncertain terms that they cannot do so. Will the ministry elaborate? Thank you. Mani Mantri. Thank you, sir. So, the honourable members raised a very old issue. So, with the recent change in the political dispensation in Bangladesh, we are aware of we are taking full cognizance and we are keeping full watch on the developments there. And we take all possible measures to safeguard our security and national integrity and our national borders. So regarding the matter which the honourable members raised, so this is a matter which is not really very relevant to the question that was asked. So the question deals with the growing influence of China in our neighbouring countries and what we are doing to counteract it. So this is a particular matter related to the Home Ministry, related to the Defence Ministry and the Home Ministry. So I would seek a protection regarding this question. And so I would assure the honourable member that any further details that he wants can be required from the Thank you, Honourable Minister. Honourable Minister has committed, he will give you the Mani Sri Milind Devda ji. Sir, thank you, sir. Thank you for indulging me and giving me the time. This time my question is more specific relating to the topic. On the topic. So the question is about China's influence on India's friendly countries. One issue we should keep in mind, my young friends who are MOSs in this ministry, is that after Donald Trump became president of the US, there is a move to shut down an organization called USAID, which provides assistance to many countries, especially in the global south. With the collapse of USAID's funds to the global south, especially Southeast Asia and other regions, where India enjoys very good relations, before anyone else fills up that vacuum, it would be a good idea if the government increases its developmental assistance from India to ensure that no hostile country towards India fills up that vacuum. Thank you. So, regarding our neighbourhood countries, we have established a very comprehensive and well-oiled mechanisms for bilateral engagements with all our partner countries. And sir, our foreign policy is also multi-dimensional, omnidirectional approach under the Honourable Prime Minister's guidance of following our ancient custom of Vasudhaiva Kutumbakam. So we have, our priority remains that providing of development assistance and capacity building as per the needs of the aspirations of neighbours remains the highlight of our policy of neighbourhood first. So
under BEMSTEC, we have hosted disaster management exercises, centers for weather, climate and energy, and also provided a number of capacity building supports. So we continue to support our neighbors in their development needs and capacity building, and continue to bolster our trade and economic ties. And regardless of the change in the situation in the world, we will continue to maintain our relations, and we continue to accord the highest priority to our relations with our neighbors. Thank you. Third supplementary, Dr. M. Thambidurai. Just I want to know from the Honorable Minister, through you, sir, China is not only encroaching the Indian economy for marketing their products. And also, sir, I want to know from the Honorable Minister, the relationship which we are whether we are having good relations. Regard Sri Lanka is the one of the issue, neighboring country. Now the new government has come over in Sri Lanka. The Sri Lanka president came and met our Prime Minister also here and went to China also. When in these circumstances, there is already we are facing a lot of problem, Kachetu issue and fishermen issue is suffering that. Whether China is going to go on influencing Sri Lanka, then what are the actions now the central government is taking to protect our fishermen and our Indian interest when Sri Lanka is making any problem for that? Because the relationship between China and Sri Lanka is going very high. It is a threatening to Indian thing for our Tamil people also. What is the Honorable Minister they are going to take? Just want to. So I'd like to reiterate that India's relationships with our neighboring countries are based on historical ties, culture exchanges, people-to-people contact, and old and ancient trade routes. Sir, regardless of what the other country in the world is doing, sir, we continue to accord highest priority to our relationship with our neighbors, and we continue to proceed on our development assistance and any other assistance that our neighbors require, including security assistance. Question over. Sir, complete. Sir, he raised a sensitive issue regarding the Sri Lankan fishermen, sir. So I would beg to remind the honourable member that this question is already listed. Conclude. It is already listed in the House. Question over. Honourable members, I am seized of an undated notice for motion received on 13 December 2024, bearing 55 purported signatures of the members of the Rajya Sabha seeking removal from Office of Justice Shekhar Yadav of Allahabad High Court under Article 124(4) of the Constitution. The jurisdiction for the stated subject matter constitutionally lies in exclusivity with the Chairman Rajya Sabha and in an eventuality with the Parliament and Honorable President. Taking note of public domain information and inputs available, it is expedient that the Secretary General Rajya Sabha shares this for information with the Secretary General Supreme Court of India. Further discussion on the Union Budget 2025-26. On the 11th February 2025, Srimati Darshana Singh had not concluded her speech while participating in the discussion. Therefore, I call upon Srimati Darshana Singh to continue her speech. Srimati Darshana Singh. थैंक यू सर. आपने मुझे इस वर्ष के बजट 2025 पर पुनः बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ. महोदय, मैं आपको इस सदन के माध्यम से बताना चाहूँगी कि यह बजट सिर्फ एक वार्षिक बजट नहीं है, बल्कि यह बजट 2047 के विकसित भारत का रोड मैप है, जो 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है. यह बजट गरीब कल्याण, युवा, किसान एवं महिला के विकास को समर्पित बजट है. महोदय,
किसान हमारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए समृद्ध समाज के लिए समृद्ध किसान का होना बहुत जरूरी है। महोदय, इस बजट में हमारे देश के अन्नदाता किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड के ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इसका लाभ देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को मिलेगा और साथ ही उत्तर प्रदेश के 2.25 करोड़ किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा, जिससे हमारे किसान भाइयों को जरूरत पड़ने पर किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े और वो आत्मसम्मान से अपना जीवन जी सके। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से ये मानना रहा है कि जब देश का किसान समृद्ध होगा और संपन्न होगा तभी देश उन्नति और विकास की दिशा में सही मायने में आगे बढ़ेगा। इसलिए इस बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की जा रही है, जिससे इसका सीधा लाभ देश के लगभग 10 करोड़ किसान भाइयों को होगा। महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार उर्वरक उत्पादन में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि इस देश के किसान यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बन सके और पर्याप्त मात्रा में उन्हें यूरिया की सप्लाई हो सके। इस दिशा में सरकार ने कई आवश्यक कदम भी उठाए हैं। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बंद पड़े 3 यूरिया संयंत्रों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है, जिससे किसान भाइयों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिल सकेगी। असम के नामरूप में यूरिया उत्पादन के लिए एक नया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और इसके साथ मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहती हूँ महोदय, कि 2014 से पहले मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं बताना चाहूँगी कि एक समय ऐसा था कि जब हमारे किसान भाइयों को यूरिया के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था और यूरिया तो नहीं मिलती थी, लेकिन कभी कभी पुलिस की लाठीचार्ज में उनकी पिटाई जरूर हो जाती थी। इस तरह का जो माहौल था, इससे इस देश के किसानों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की योजनाएं बनाई। महोदय, सरकार ने अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मध्य वर्ग की आर्थिक योजना सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उनके 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करने का काम किया है, जिससे मध्यम वर्ग के हाथ में पर्याप्त धन होगा और उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। महोदय, इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत देने का ऐलान किया है। अब वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इससे सीनियर सिटीजन को ज़्यादा बचत करने में मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। महोदय, इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। यह बजट युवाओं कंक्लूड करिए, आपका समय बस कंक्लूड कर रही हूँ सर। यह बजट युवाओं की शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। महोदय, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से भारतीय रेल आम जन को विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया करा रही है। इस क्रम में इस बजट में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत ट्रेनें बनाई और चलाई जाएंगी, इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। बस मैं अपनी एक बात और कहते हुए कंक्लूड कर रही हूँ महोदय। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है। मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। साथ ही मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ कि जिनके नेतृत्व में 2047 के विकसित भारत के विजन को मजबूती देने वाला बजट पेश हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री इमरान प्रताप गढ़ी जी, 15 मिनट। धन्यवाद सभापति महोदय। कभी सुदामा पांडे धूमिल जी ने कहा था कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। सभापति महोदय,
वो भी क्या दिन थे जब संसद में देश का बजट पेश होता था तो देश की सड़कें ठहर जाया करती थी। रेल बजट पेश होता था तो लोगों की उम्मीदें रेल के डिब्बों की तरह पटरियों पर दौड़ने लगती थी। पूरा देश धड़कने रोक करके वित्त मंत्री और रेल मंत्री को सुना करता था। अफसोस, अब बजट पेश हो जाता है, मीडिया चैनल सरकार का महिमा मंडन करते हैं और बेचारी जनता बजट के आंकड़ों के शब्द जाल में उलझी हुई महीनों बाद समझ पाती है कि उसका तो फिर से कट गया। सभापति महोदय, पिछले 2 साल अमृतकालीन बजट पेश किए गए और इस बार एक नई शब्दावली गढ़ी गई है, तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण का बजट। सभापति महोदय, सुनने में कितना अलंकारिक लगता है ये शब्द। सोच रहा हूं देश की वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि आखिर किसकी संतुष्टि? जिस बजट में मनरेगा के लिए 1 रुपए की बढ़ोतरी ना हो, वही पुराना 86,000 करोड़, जबकि पहले ही 9,754 करोड़ का घाटा हो, जिस मनरेगा से करोड़ों मजदूरों के घर में चूल्हा जलता हो, उस मनरेगा में काम करने वाले गरीब मजदूरों के लिए अगर आपके खजाने से 1 रुपया भी इजाफी नहीं निकल सका तो भला कौन संतुष्ट हुआ साहब? इस देश का गरीब मजदूर या आपके उद्योगपति दोस्त? वो जो महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख मतदाता बढ़ाए गए थे, अरे उन्हीं के लिए मनरेगा का थोड़ा सा बजट बढ़ा देते। क्या उसमें मनरेगा का एक भी मजदूर नहीं था 40 लाख लोगों में? सारे के सारे 12 लाख की छूट वाले से आगे के लोग थे। सभापति महोदय, कल जब वित्त मंत्री जी देश की संसद में भाषण दे रही थी तो वहां मुंबई में कोई गरीब इंसान जब अपनी जेब टटोल करके अपनी मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल भरवा रहा था तो उस पेट्रोल की कीमत थी 103 रुपया प्रति लीटर। आखिर इतना महंगा पेट्रोल डीजल खरीद के कौन संतुष्ट हो रहा है? इस देश के गरीब लोग या फिर सरकार के चहेते धन्ना सेठ? सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी इस बजट को मध्यम वर्ग को संतुष्ट करने वाला बजट बता रही हैं। अरे मैडम, हम आप यहां पर बैठे रहते हैं और वहां बाहर इसी दिल्ली में 1 लीटर दूध, चाहे वो अमूल का हो या फिर मदर डेयरी का हो, उसकी कीमत 73 रुपए लीटर है। इतना महंगा बेच करके कौन संतुष्ट हो रहा है? गरीब जनता या आपके धन्ना सेठ दोस्त? सभापति महोदय, इस सरकार का बाजार और महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। चाहे देश में लहसुन 400 रुपए किलो बिक जाए, टमाटर 100 रुपए किलो बिक जाए, प्याज का दाम सुनकर आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन वित्त मंत्री महोदया बजट में महंगाई का मां भी नहीं बोलती हैं। बच्चों की किताब और पेंसिल तक पर टैक्स लगाने वाले सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आप मध्यम वर्ग का हितैषी बताते हैं खुद को, तो शर्म नहीं आती है? खुद को धार्मिक कहने वाली सरकार भगवान श्री कृष्ण के प्रिय खाद्य पदार्थों दही और मक्खन तक पर जीएसटी लगाती है और बात करती है मध्यम वर्ग की हिमायती होने की। जिंदा रहते हुए जनता से हर चीज पर टैक्स वसूलने वाली यह सरकार कम से कम मरने पर तो लोगों को बख्श देती, लेकिन नहीं, वहां भी लूटना है। अंतिम संस्कार के सामान, अगरबत्ती, धूप बत्ती, केवड़ा जल, चंदन पाउडर, जौ, बताशा, काला तिल, पंचरत्न, कपूर और कफन तक पर टैक्स लेने वाली यह सरकार किस मुंह से खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है? कौन सी संतुष्टि? किसकी संतुष्टि? कदम कदम पर टैक्स देकर लुटने वाली जनता की या फिर जनता से टैक्स वसूल करके धन्ना सेठों का खजाना भरने वाली सरकार की? किसकी संतुष्टि? सभापति महोदय, 18 अगस्त 2015 आरा का बिहार का ऐतिहासिक मैदान, सजा हुआ मंच, हजारों की भीड़ और सामने खड़े हुए देश के प्रधानमंत्री का भाषण। बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं बिहार के लिए पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। 50,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? अखिलेश भाई, 60,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? 70,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? 80,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? चलो, मैं बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूं। 10 साल हो गए सभापति महोदय, वही ढाक के 3 पात। बिहार आज भी विकास की बाट जोह रहा है। भाषण आज भी प्रधानमंत्री जी के YouTube चैनल पर सुना जा सकता है।
जो झूठ बोल के करता है मुतमईन सबको, वो झूठ बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। सभापति महोदय, ये तो राहुल जी का असर है। कौन सा शब्द सर, कौन सा शब्द? झूठ। ठीक है सर, मिथ्या बोल करके, जो मिथ्या बोल के करता है मुतमईन सबको, वो मिथ्या बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। ये राहुल जी का असर है। जो मखाना बोर्ड की घोषणा हुई, अखिलेश जी आपको याद होगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 30 जनवरी 2024 को बिहार के रंगभूमि मैदान में राहुल गांधी जी का पूर्णिया में भाषण था और उसमें मखाना को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी। ये उनका असर है कि आपको मखाना बोर्ड बनाना पड़ा, वरना तो आप मैखाना बोर्ड बनाने वाले लोग हैं। सभापति महोदय, बिहार को झूठे पैकेज और चुनावी दिलासे देना बंद करिए। आज भी जब कोसी में बाढ़ आती है तो पूरा सीमांचल बर्बाद हो जाता है। मैंने उस तबाही को अपनी आंखों से देखा है। 2016-17 की बाढ़ में अपने इन्हीं हाथों से राहत सामग्री बांटी है मैंने। अगर सच में बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बिहार को बाढ़ से बचाने का प्रबंध करिए। पूर्णिया एयरपोर्ट 10 साल से बाट जो रहा है, घोषणा 2014 में हुई, बन के आज तक तैयार नहीं हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किशनगंज सेंटर बजट के अभाव में दम तोड़ता जा रहा है। मैंने पिछले बजट सत्र में भी आवाज उठाई थी। आज फिर वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, दामन फैला करके, कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किशनगंज सेंटर बन जाने दीजिए। आखिर कौन सी नफरत है? ये मुल्क हमारा भी है, इस मुल्क की मिट्टी में हमारा भी खून पसीना शामिल है। हमसे इतनी भी क्या नफरत? रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। सभापति महोदय, अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट काटकर मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर देना, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर देना, नई मंजिल योजना बंद करना, धरोहर योजना बंद करना। 2024-25 के बजट में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के लिए 3183 करोड़ रुपए की घोषणा हुई, लेकिन देश को हैरत होगी कि बाद में समीक्षा करके लगभग आधा कर दिया गया, 1868 करोड़ रुपए। मुझे सरकार से पूछना है कि कौन संतुष्ट हुआ? इस देश का अल्पसंख्यक संतुष्ट हुआ है या आप संतुष्ट हुए? किसका संतुष्टिकरण? सभापति महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप ही ने 1 मार्च 2018 को किंग अब्दुल्ला को, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को मेहमान बना करके इसी दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान देना चाहता हूं। कंप्यूटर देने की बात तो छोड़िए, पढ़ाई के लिए जो स्कॉलरशिप मिल रही थी उसको भी छीन लिया आपने। किसको संतुष्ट करने के लिए? हम समझते हैं इस साजिश को। आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट काटते काटते एक दिन मिनिस्ट्री को ही बंद कर देना चाहते हैं। वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता, सो ये किया कि हमें वक्त पर दवाएं न दी। सभापति महोदय, मैं तो वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि शायद आपको पता ही नहीं है कि गृहस्थी चलाने वाली एक गृहिणी की मुश्किलें क्या क्या होती हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब वो किचन में सब्जी बनाने के लिए कड़ाई में तेल डालती है तो उसके साथ उसके आंसू भी गिरते हैं। सभापति महोदय, शायद उन्हें पता भी ना हो कि एक छोटी सी गाड़ी और एक छोटे से फ्लैट का EMI भरने के बाद इस देश का एक गरीब इंसान जब अपने बच्चों की फीस भरने के बारे में सोचता है तो उसे कितनी खुशियों का गला घोंटना पड़ता है। शायद उनको पता भी नहीं है कि फसल बेच करके बिटिया की शादी का सपना सजाने वाला किसान जब अपनी फसल बर्बाद देखता है तो कितनी रातें सो भी नहीं पाता है। सभापति महोदय, शायद वो कभी इस पीड़ा को समझ ही नहीं पाएंगी कि परिवार के किसी एक सदस्य को कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो घर और जमीनें गिरवी रख उठती हैं लेकिन इलाज नहीं हो पाता। सभापति महोदय, इसी देश की संसद में कभी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जब देश की करेंसी गिरती है तब देश की प्रतिष्ठा गिरती है। एक तरफ कोलंबिया जैसा छोटा सा देश और उसके प्रधानमंत्री गुस्तावो पेत्रो खड़े हैं जो कोलंबिया के नागरिकों को हथकड़ी लगाकर लाने वाले जहाज को अमेरिका बैरंग वापस लौटा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं जो बेड़ी और हथकड़ी लगा करके लाए गए बेटों के अपमान पर एक शब्द नहीं बोल रहे। सभापति महोदय, मैं इतिहास के पन्ने पलट रहा हूं, मुझे 2 किरदार याद आ रहे हैं। एक तरफ निक्सन के 7वें बेड़े की धमकियों के सामने लोहे की तरह अडिग इंदिरा गांधी खड़ी हैं, तो दूसरी तरफ खुद ही नमस्ते ट्रंप का नारा लगाते हुए प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। मेरे कानों में सुषमा स्वराज जी की आवाज गूंज रही है। बहुत कम बोलने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत ज्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री जी को जब देश की बागडोर सौंपी थी तो $1 58 का था।
आज 85 से 87 के बीच में झूल रहा है। इन दिनों रुपए की अहमियत गिरती है तो न तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है न प्रधानमंत्री की गरिमा। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए कतारों में लगना पड़ता हो, उस देश में यह सरकार 12 लाख तक के टैक्स न लेने के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। हुकूमत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, ये आंखें छीनती है और चश्मे दान करती है। सभापति महोदय, महाराष्ट्र का भिवंडी हो, मालेगांव हो, इचलकरंजी हो, यूपी का बनारस हो, मुआयमा हो, मुबारकपुर हो, रांची का छोटा नागपुर हो, बिहार का भागलपुर हो, हर जगह बुनकरों की उम्मीदें तोड़ रही हैं, लेकिन इस सरकार के पास उनके लिए कुछ भी नहीं है। मुरादाबाद का पीतल उद्योग, कानपुर का चमड़ा उद्योग, सहारनपुर का लकड़ी उद्योग, फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग, अलीगढ़ का ताला उद्योग, सब सरकारी प्लानिंग से तबाह हो रहे हैं। इन तमाम के बीच सरकारी सपोर्ट से बस एक उद्योग फल फूल रहा है, नोएडा का नफरत उद्योग। सभापति महोदय, जिस देश में 40 से 45% मेडिकल फैकल्टी की सीट खाली हो, वहां बजट में 75,000 नए मेडिकल सीट्स का ऐलान हो रहा है। सरकार बहादुर, कम से कम इस देश के पढ़े लिखे युवाओं को तो मूर्ख समझना बंद करिए। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। पहले 7500 मेडिकल सीट्स बाद में बनाइएगा, पहले जो एम्स में 2161 पद खाली पड़े हैं उनको तो भर दीजिए। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। सभापति महोदय, फिर झूठ आया है, मैं उसे मिथ्या कर दे रहा हूं। शायरी में बार बार आ जाता है, क्या करूं महोदय। काश ये बजट, सभापति महोदय, वो एक शब्द मैं मिथ्या कर दे रहा हूं सर, वो एक शब्द को हटा दीजिए। ध्यान रखें, ऐसे जो भी शब्द होंगे आपके वहां। सभापति महोदय, काश ये बजट बीपीएससी के पेपर लीक की शिकायत करने वाले नौजवानों पर बरसती हुई पुलिस के लाठियों पे, जख्मों पर मरहम लगा पाता। सभापति महोदय, पिछले 80 दिन से 70 साल का एक बुजुर्ग एमएसपी की लीगल गारंटी मांगता हुआ आमरण अनशन पे बैठा हुआ है। काश ये बजट किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की टूटती हुई सांसों की पीड़ा सुन पाता। काश ये बजट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली, कोटा, पटना, अहमदाबाद जैसे शहरों में, इलाहाबाद जैसे शहरों में किताबों के साथ गल रहे युवाओं के सपनों को जिंदगी दे पाता। काश ये बजट वंदे भारत के सुनहरे विजुअल के बजाय देश की गरीब जनता को कुछ और पैसेंजर ट्रेनें दे पाता। काश ये बजट सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकटों में मिलने वाली रियायतें वापस लौटा पाता, जिनको सरकार ने कोविड के नाम पे छीन लिया था। काश ये बजट किसानों की राह में कीले नहीं बल्कि कालीन बिछाने वाला बन पाता। काश ये बजट सरकारी मालिकों को यह समझा पाता कि नेहरू को कोसने से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की अर्थ नीति अपनानी पड़ेगी। पिछले 11 साल से नेहरू जी को कोस रहे हैं, आखिर कब तक कोसिएगा? थोड़ा पंडित नेहरू जी के बारे में पढ़िए, तब पता चले कि पंडित नेहरू की शख्सियत का नाम है। दुनिया का पहला ऐसा राजनेता जिसने अपनी जिंदगी की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए 3259 दिन अंग्रेजों की जेल में बिताए। पंडित नेहरू एक ऐसे महान शख्स जिनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू, जिनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जिनके बहनोई पंडित रंजीत सीताराम, जिनकी बेटी इंदिरा गांधी, जिनके दामाद फिरोज गांधी, सब ने अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में जेल काटी। आप किस मुंह से उनकी लकीर छोटी करने की बात करते हैं? नहीं कर पाइएगा, 7 जन्मों में नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांसें थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। सभापति महोदय, मैं आपके सामने खड़ा होकर के एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं कि महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर तो जश्न मना रहा है, एक फकीर सड़क के किनारे चादर तान के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, घोड़े से उतरा, उस फकीर के पास गया और उसे सोता देख करके उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने यूनान फतेह कर लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उन्नीदी आंखों से सिकंदर को देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। सभापति महोदय, गरीब जनता को लात मारना बंद करिए। ये अमीरों के लिए बनाया गया बजट है, ये निराशाजनक बजट है। हम अमृतकाल सुनते आ रहे थे, ये अमृतकाल इतनी जल्दी समाप्त हो गया
कि अब अमृत काल का कोई नाम तक नहीं लेना चाहता है। इसलिए मैं इस सदन में खड़ा होकर के देश की वित्त मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि आपने अल्पसंख्यकों के बजट में जो कटौती की है उसको बहाल करिए। आपने मनरेगा को जो स्थिर रखा है उसका घाटा 9,754 करोड़ है, कम से कम उतना बढ़ा करके फिर से उसे बहाल करिए। नौजवानों के लिए रोजगार दीजिए, किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए। यही मैं आपसे अपील कर रहा हूं। धन्यवाद सर, आपने इतना जो समय दिया उसके लिए शुक्रिया। माननीय श्री बाल योगी उमेश नाथ, माननीय श्री बाल योगी उमेश नाथ। मैं उधर आ जाऊं। माननीय सभापति जी, 10 मिनट। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के बहुत ऊंचे विचार और ऊंची सोच के माध्यम से राष्ट्रपति जी का भाषण बहुत संतुलित और बहुत व्यवस्थित है। भारत की विकास यात्रा और अमृत काल को अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त हुई है। हम ये मान के चलते हैं कि देश में बहुत लंबे समय से धारा 370 भी चल रही थी और उससे लाखों की तादाद में लोग जूझ रहे थे। इधर श्री राम जन्मभूमि जो पिछले 1000 साल की समस्या थी, उसका समाधान होने में बहुत विलंब हुआ और उसमें 500 साल तक इस देश के ऋषि मुनियों ने संघर्ष किया और वो संघर्ष का काल पूर्ण हुआ और इस देश में निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत सारे रोड बने, कई पुल बने और उसमें अयोध्या तक जाने के लिए लाखों लोगों को खूब सारी सुविधा हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी के किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को पिछले महीने लगभग 4 करोड़ 41 हजार रुपए की राशि का भुगतान भी हुआ। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना सरकार ने बनाई। राष्ट्रपति जी ने निरंतर इस देश की हित के लिए, चिंतन के लिए अपना उद्बोधन दे करके पूरे राष्ट्र के लोगों को अभिभूत किया है। बजट में माननीय राष्ट्रपति जी ने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी दृष्टिगत रखते हुए उसकी विकास की ओर ध्यान दिया है। अंत्योदय योजना की भावनाओं को उसके प्रति सरकार संकल्पित रही है। गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान मिले। एक तरफ पिछले अनेकों वर्षों से हम ये बात सुनते आ रहे थे कि तुम हमको वोट दो, हम तुम्हें रोटी और कपड़ा और मकान देंगे, लेकिन जब से इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई तो सबसे पहले गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान देने का संकल्प लिया गया। वो अभूतपूर्व व्यवस्थाएं स्थायी रूप से मिलने, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा ध्यान केंद्रित रहा है और समाज उससे लाभान्वित भी हुआ है। इन्हीं मूलभूत योजनाओं की वजह से देश में 70 वर्षों के बाद प्रत्येक नागरिक को ऐसा लग रहा है कि चाहे वह गाड़ी चलाने वाला हो, चाहे जूते पर पॉलिश करने वाला हो, चाहे भिक्षावृत्ति करने वाला हो, इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी मन, वचन, कर्म से सत्य, धर्म और अहिंसा के साथ चल करके भारत के विकास में हम सबको साथ लेकर चलने का जो संकल्प लिया है वो बहुत ही सराहनीय है। देश में नागरिकों को बेहतर व्यवस्था के लाभ के लिए 1,75,000 करोड़ आयुष्मान मंदिर बने हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनने से इस देश का कल्याण होगा क्या, लेकिन
आरोग्य मंदिर भी बने हैं जिसमें असाध्य रोगों से लोगों को मुक्ति दिलाई जाएगी, चाहे वो कैंसर हो, डायबिटीज हो, टीबी हो। ऐसी व्यवस्थाओं में भी समाज अग्रणी पंक्ति में आए और राष्ट्र का ये जो सरकार है निरंतर उसके लिए संकल्पित है। विपक्ष बोलता रहता है कि मंदिर बनाने से क्या भारत का कल्याण होगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से भारत की सरकार चल रही है, भारत में पूर्ण रूप से शांति बनी हुई है। 1,70,000 करोड़ लोग डरावनी जिंदगी से मुक्त हुए हैं। कहीं भी बम फटने की सूचना प्राप्त नहीं होती है। कहीं धारा 370 के साथ साथ इस देश में कहीं भी किसी भी प्रकार की अशांति नहीं बनी है। आज इस देश में सब लोग बहुत अमन और चैन से जी रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सभी लोगों के जीवन के लिए ध्यान दिया है, लेकिन कुछ लोग उनकी राजनीतिक से प्रेरित बजट बता रहे हैं, जबकि बजट में सभी बातें ऑथेंटिक है, बकवास नहीं है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से पूरे भारत को जोड़ दिया गया है और उधर माननीय मोदी जी का ऊंचा विचार, उनकी ऊंची सोच, उनका ऊंचा चिंतन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सभी प्रकार हम सामाजिक समरसता के रूप में देखने को मिल रहा है और जाति पाति पंथ संप्रदाय को एक तरफ रखकर इस देश में सब लोगों के लिए काम हो रहा है। जो काम 70 वर्षों में नहीं हुए वह केवल 10 वर्षों में करके दिखाए हैं। श्री राम मंदिर की समस्या जो कि बहुत पुरानी थी उसका भी समाधान हुआ है और हमको ऐसा भी लगने लगा कि इस देश की एक बड़ी पंचायत जो राज्यसभा और लोकसभा है उसमें अनेकों ऋषियों का नाम लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद लोगों के माथे पे तिलक लगना देखने को मिला है, हाथ में रक्षा सूत्र बांधने को देखने को मिला है और इस देश में सब लोग सनातन धर्म की परंपराओं के साथ जीने का अधिकार जिस तरीके से लोगों को मिला है, मैं समझता हूँ कि घर घर सनातन की चर्चा हो रही है। माननीय राष्ट्रपति जी का ध्यान इस देश के गरीब से लेकर अमीर तक बना हुआ है। इन्हीं भावनाओं को बिल्कुल पवित्र है। उनका भाव एक जैसे सबरी माता का भाव था जो राम जी को निरंतर 14 वर्ष तक निहारती रही और सबरी के समान ही इस देश की राष्ट्रपति जी सबरी जैसी जिसका भाव त्रिलोकी के नाथ राम जी के प्रति था, ठीक उसी प्रकार से उनका भाव इस देश की तमाम जनताओं की ओर बना हुआ है। मैं इस राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर उनको पूर्ण रूप से धन्यवाद के साथ साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। प्लीज टेक योर सीट, प्लीज। डॉक्टर सस्मित पात्रा जी, प्लीज आपस में बात नहीं, प्लीज। हाँ, डॉक्टर सस्मित पात्रा। Grateful. Honorable Deputy Chairman, sir, I stand here today not just as a representative of my state, Odisha, but as the voice of a state that has been abandoned by this union budget. This is not just neglect, but this is an affront to 4.5 crore people of Odisha. Let me remind this House, the Odisha BJP in its 2014 election manifesto promised special category status for Odisha. 11 years later, Honorable Deputy Chairman, sir, where is that promise? Where is that status? Where is the justice? The Biju Janata Dal and our leader, Shri Naveen Patnaik ji, have been constantly demanding special category state status for Odisha over the past 2 decades. The 4.5 crore people of Odisha are hopeful that the state will be provided special category status. It hasn't happened in this budget. Odisha is the economic backbone of this nation. Our coal, our iron ore, our minerals fuel India's progress. Yet when Odisha asks for its fair share, this government turns its back. We suffer cyclones and natural disasters year after year after year, yet Delhi refuses to recognize our pain. This budget showers favors on some, ignores others, and treats Odisha like an afterthought.
Is Odisha only good enough to extract mines, minerals, coal and wealth, but not worthy of growth and support for special category state status? I will conclude. My time is out. In concluding, Odisha's resilience must be rewarded, not overlooked. If we expect our state to rebuild after every catastrophe while continuing to fuel India's growth, then we must ensure it receives the support. This budget must not turn its back on Odisha. This is the decisive moment. Please provide special category status to Odisha through this budget. Bande Utkal Janani. Thank you. Jai Hind. Thank you, Dr. Sasmit ji. Manya Shri A.D. Singh ji. Manya Shri A.D. Singh, not present. Manya Srimati P.T. Usha, not present. Manya Shri Abdul Wahab ji, not present. Manya Shri Abdul Wahab, not present. Srimati Sangeeta Yadav ji, 5 minutes. कितना मिनट है मानू? 5 मिनट. अरे कट गया टाइम. माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे भारत को विकसित बनाने वाले बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करती हूं और आपके माध्यम से सदन को प्रणाम करती हूं। माननीय उपसभापति जी, चूंकि मैं यूपी से आती हूं तो महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए सरकार को बधाई देती हूं और उस वहां पर हुई अपनी घटना पर अपना शोक संवेदना भी व्यक्त करती हूं। माननीय उपसभापति जी, पहले जैसे 2014 के पहले अगर किसी को काशी विश्वनाथ के दर्शन करने होते तो हम लोग के पास फोन आता था। हम मैं अपनी बात भी कर रही हूँ तो जाने से भी डर लगता था और अयोध्या में तो कुछ कहना ही नहीं था। लेकिन आज जो भी महाकुंभ में जा रहे हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि मैं अयोध्या भी हो लूँ और काशी विश्वनाथ के दर्शन भी कर लूँ। ये अगर हो पाया है तो माननीय मोदी जी की वजह से हो पाया है, जिसके अभी मैं सुन भी रही थी अपने एक साथी को, उन्होंने सनातन धर्म पर जो बात कही वो पूरी चरितार्थ हो रही है। माननीय उपसभापति जी, मैं अभी माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी चर्चा सुन रही थी और अभी बजट पे भी विपक्षी भाई बहनों को अपने सुन रही थी, तो उन्होंने बार बार एक बात कही कि युवाओं के लिए कुछ नहीं किया गया, रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, लगातार इस बात की चर्चा थी। तो मैं अपनी इस बात पे तथ्यों के माध्यम से युवा बजट पे बात करना चाहूँगी। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि ये युवा समर्पित बजट है और ये मैं फैक्ट के माध्यम से बताना चाहूँगी। आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। इसका श्रेय हमारे युवा उद्यमियों को ही जाता है। स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया कार्यक्रमों ने लाखों युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें नए रोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार किया है। आज देश में 1.3 लाख स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से 115 से अधिक यूनिकॉर्न शामिल है। इस बजट में भी स्टार्टअप इंडिया के लिए जो लोन की सीमा थी वो 10 करोड़ से बढ़ा के 20 करोड़ तक कर दी गई है और गारंटी की फीस भी कम की गई है। युवा पीढ़ी के लिए 1 करोड़ इंटर्नशिप योजना तैयार की गई है। डिजिटल क्रांति के इस युग में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है। 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से 8 लाख नए रोजगार का सृजन हुआ है। निर्माण के क्षेत्र में भी 20 लाख नए रोजगार का सृजन हुआ है, जो बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश के कारण संभव हुआ है। MSME सेक्टर के लिए 25,000 करोड़ का जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड तैयार किया गया है, इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं उनको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले 6 करोड़ मजदूरों को ई श्रम पोर्टल से जोड़ा गया है। स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1500 स्कूलों में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लैब्स की स्थापना की गई है। माननीय उपसभापति जी, भारत में पहली बार 50,000 विदेशी छात्रों ने भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश लिया है। यह हमारे देश की उच्च शिक्षा तंत्र की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात माननीय उपसभापति जी, मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड भी एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स में, तो पहले हमारे पास एक बायोडाटा आता था कि मैडम थोड़ा नौकरी के लिए प्रयास किए, ये करिए, बहुत आते थे। 2 ही काम होते थे, बहुत लोग एडमिशन के लिए प्रयास करते थे या नौकरी के लिए। लेकिन आजकल का जो बदलाव मैंने देखा है, कोई भी यूथ आ रहा है तो ये नहीं कहता कि नौकरी चाहिए, मैडम कुछ काम करना चाहते हैं, इसमें कुछ मदद हो सकती है आपकी। तो ये जो सोच का जो बदलाव आया है, ये 2014 के बाद माननीय मोदी जी के प्रयासों से आया हुआ है और माननीय उपसभापति, इसकी कोई कीमत नहीं है। मैं अपने अन्नदाता के बारे में भी कुछ बात करना चाहूँगी।
कि किसानों के लिए भाई हमारे अन्नदाता हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी ऐसा नहीं किया कि कभी कोई बैठक हुई, कई पार्टी की भी कोई संगठन की बैठक हुई, हम सांसद की हुई, माननीय मंत्री जी लोगों की हुई, तो ऐसा कभी होता नहीं है कि हमारे किसान भाइयों की कभी चर्चा ना हुई हो। और इस बजट में भी मैं कुछ अपने फैक्ट के माध्यम से बताना चाहूँगी। आकांक्षी जिलों की अभूतपूर्व सफलता के बाद प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना 100 जिलों में शुरू की गई है। दलहन पर आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन को कार्यान्वित किया जा रहा है। कपास उत्पादन के लिए 5 वर्ष के लिए नया मिशन का आयोजन किया गया है। आज हमारी सरकार तूर, उड़द, मसूर पर मिशन के साथ 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भर कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी कर रही है। आधुनिक कृषि में तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। सरकार ने कृषि क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन हेतु 1.5 लाख करोड़ का निवेश किया है। यह निवेश किसानों को उन्नत उपकरणों, सटीक कृषि तकनीकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बेहतर जानकारी उपलब्ध कराने में सहायक होगा। माननीय उपसभापति जी, इसके अलावा सरकार किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड, फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि आदि योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रही है। और चूंकि माननीय उपसभापति जी मैं यूपी से आती हूं, तो थोड़ा सा यूपी के लिए इस बजट में क्या है उस पर बात करना चाहूँगी। चूंकि वह डबल इंजन की सरकार चल रही है और इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि आज लगातार यूपी की चर्चा हर जगह है। उत्तर प्रदेश को केंद्रीय बजट से 1.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन मिला है, जो यह राशि राज्य के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और कंक्लूड करिए संगीता। यही तो संकट है, जैसे मैं खड़ी होती समय मेरे हाथ में नहीं है अभी बहुत। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, सबको असर। बस 1 मिनट का टाइम लेती हूँ मैं। उड़ान योजना के तहत यूपी के 24 छोटे हवाई अड्डों को राष्ट्रीय हवाई नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रावधान किया गया है। AI शिक्षा के लिए यूपी में 500 करोड़ रुपए की लागत से एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, जिसे ग्लोबल टेक्नोलॉजी के हब के रूप में विकसित होगा। महाकुंभ, बस 1-2 लाइन करके बंद करिए। महाकुंभ, बौद्ध सर्किट, राम मंदिर के लिए भी इसमें बजट में धनराशि का प्रावधान किया गया है। और ये 2 लाइनें मैं अपने सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगी कि एक जो मोदी जी का और हम सबका सपना है कि भारत 2047 तक विकसित देश बने, उसके लिए मैं 2 लाइनें सबसे कहूंगी। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को हम जगा रहे हैं, कुछ लोगों को आप जगा दो। धन्यवाद। माननीय मुजीबुल्लाह खान, 3 मिनट। धन्यवाद सर। मैं बजट के ऊपर बोलना चाहता हूं, लेकिन हमारे उड़ीसा से जो मेरे साथी सांसद बहुत कुछ उड़ीसा के बारे में बोल चुके हैं। मैं एक चीज बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे बजट में 2 चीजों के लिए ध्यान नहीं दिया गया है, 2 लोगों के लिए ध्यान नहीं दिया गया है। वो है हमारे देश के किसान और जवान। किसान जो हमारे सबका पेट भरता है, हमारा भूख मिटाता है, और जवान जो हमारी रक्षा करता है, ये दोनों के बारे में बजट में कुछ नहीं है। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा इसीलिए दिया था कि किसान जो हमारे लिए पैदावार उपजाता है, हमको खाने के लिए अनाज देता है, उसको छोटा सा MSP के लिए आज तक वो स्ट्राइक में बैठा है। सारा भारतवर्ष से लेकर हर जगह में ये समस्या है। उनका बात क्यों नहीं सुना जा रहा है? बजट में उसके बारे में कुछ भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, स्वामीनाथन कमीशन का जो रिपोर्ट है उसको अगर फुल प्लेज लागू किया जाता तो ये समस्या नहीं आता और हमारे देश के किसान खुशहाली से रहते और हमको अनाज पैदा करके देते। वो एक तो सबसे बड़ा समस्या है। दूसरी बात है हमारे जवान जो सियाचिन से लेके गर्म से लेके ठंडा से रेगिस्तान से लेके हर जगह में हमारी रक्षा करते हैं, वो जवानों के बात ठीक से सुनी नहीं जा रही है। इसी के कारण बहुत से जगह में ऐसा होता है, जवान या तो अपने आप को गोली मार देता है या फिर सामने वाला को गोली मार देता है। तो बजट में उन लोग के बारे में भी कुछ प्रावधान नहीं है और कुछ भी कहा नहीं गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं रेलवे लाइन के बारे में। हमारे उड़ीसा में, मेरे जिला में एक रेलवे लाइन आने वाला है जूनागढ़ से नवरंगपुर। वो रेलवे लाइन के बारे में 1 रुपया भी बजट में नहीं रखा गया है। कई सालों से सुनने आ रहा है रेलवे लाइन होगा, शुरू होगा, काम होगा, लेकिन उसके बारे में वो जिला ऐसा जिला है, बैकवर्ड जिला हमारा आदिवासी जिला है, वो जिला में अभी तक रेलवे लाइन पहुंचा नहीं है। 75 साल हो गया सर।
देश स्वाधीन होगी। बैंकिंग फैसिलिटीज, रूरल बैंकिंग का भी गांव में कोई प्रावधान नहीं है। बहुत से लोग पेंशन पाने के लिए बैंक जाने के लिए बहुत से दूर जाना पड़ता है। जो उम्र हो रहता है, उम्र वाले लोग चल नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते, जा नहीं सकते, बहुत ही समस्या से उन लोग आगे बढ़ते हैं। मोबाइल नेटवर्क भी उड़ीसा में बहुत से जगह में ठीक नहीं है, जिसके कारण छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आजकल जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें मोबाइल नेटवर्क ढूंढते ढूंढते कोई पहाड़ में कोई झाड़ में चढ़ जाता है। इसके बारे में मेरे तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे नेता नवीन पटनायक कई बार केंद्र सरकार के पास आग्रह किया। यहाँ तक के एक राज्यसभा एमपी भी, जो उनका मेजोरिटी नहीं रहने के कारण भी हम लोग दिए थे राज्यसभा एमपी, जो कि मोबाइल नेटवर्क के मंत्री भी हैं और रेलवे मंत्री भी हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि हमारे उड़ीसा का जो रेलवे कनेक्टिविटी और मोबाइल कनेक्टिविटी को ठीक से बहाल किया जाए और प्रावधान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माननीय श्री रामदास अठावले अनुपस्थित। माननीय श्री रामदास अठावले नहीं। डॉक्टर संगीता बलवंत, डॉक्टर संगीता बलवंत। माननीय 10 मिनट। उपसभापति महोदय जी, आपने मुझे 2025-2026 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात का प्रारंभ मैं अपनी स्वरचित पंक्तियों से करना चाहूंगी। आधी आबादी ने बजट पेश किया आधी आबादी का, आधी आबादी ने बजट पेश किया आधी आबादी का, साथ लिया जवान और किसान को, साथ लिया जवान और किसान को। आवाम देख रही है बजट में मुस्कुराते खिलखिलाते हिंदुस्तान को, आवाम देख रही है बजट में मुस्कुराते खिलखिलाते हिंदुस्तान को। माननीय सभापति महोदय जी, आज इस सदन में खड़ी होकर अत्यंत प्रसन्नता और गर्व के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत 2025-26 केंद्रीय बजट की भूरी भूरी सराहना करती हूँ। यह बजट भारत का 78वां बजट है, हमारी मोदी सरकार का यह 12वां बजट है और वित्त मंत्री के रूप में माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इसे लगातार 8वीं बार प्रस्तुत किया है। भारत का 50.65 लाख करोड़ का यह बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारी सरकार की नारी सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर युवा, खुशहाल किसान और राष्ट्र के समग्र विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं को भारत की विकास यात्रा का केंद्र बिंदु बनाया है। यह बजट इस विश्वास को और मजबूत करता है कि नारी का उद्धार स्वर्णिम युग का द्वार है। इस बजट में कई क्रांतिकारी योजनाएं शामिल की गई हैं जो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देंगी, स्वास्थ्य और शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करेंगी और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएंगी। माननीय उपसभापति महोदय जी, मैं यह कहना चाहती हूं कि सच्ची प्रगति की नींव आर्थिक सशक्तिकरण है। इस बजट में पहली बार उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपए तक के टर्म लोन की एक नई योजना शुरू की गई है। माननीय सभापति महोदय जी, एक महिला होने के नाते मैं यह कह सकती हूं कि महिलाओं के लिए जल की उपलब्धता उनके लिए सम्मान और सुरक्षा है। हमारी सरकार में जल जीवन मिशन ने पहले ही 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किया है, जिससे महिलाओं पर पानी लाने का बोझ कम हुआ है। यह बजट योजना को 2028 तक विस्तारित करता है। मोदी सरकार ऐसी अनगिनत एवं विविध योजनाओं, देश हित हेतु लिए गए निर्णयों के कारण जनता में लोकप्रिय है। सरकार
देश और जनता के बारे में क्या सोचती है और जनता सरकार के बारे में क्या सोचती है, इसको मैं अपनी पंक्तियों में कहूंगी। शीर्ष कदम हो, देश प्रथम हो। शीर्ष कदम हो, देश प्रथम हो, सबका हो उद्धार। देवतुल्य जनता, देवतुल्य जनता हरदम चाहे मोदी सरकार। देवतुल्य जनता हरदम चाहे मोदी सरकार। माननीय सभापति महोदय जी, यह बजट हमारे सरकार की समावेशी विकास, महिला नेतृत्व वाली विकास और भारत के उत्थान के प्रति अडिग प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के गतिशील नेतृत्व में हम सिर्फ महिला सशक्तिकरण की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे वास्तविकता में बदल रहे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का बजट 3,624.80 करोड़ से बढ़ाकर 4,482.90 करोड़ कर दिया गया है, जिससे लाखों महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। माननीय उपसभापति महोदय जी, प्रधानमंत्री आवास योजना महिलाओं को घर के स्वामित्व में प्राथमिकता देती है। यह पहल इस बजट में भी जारी है, जो महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और पारिवारिक निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का बजट 1500 करोड़ से 3500 करोड़ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का बजट 32,500 करोड़ से 54,832 करोड़ कर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्डों से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋणों की सुविधा मिलती है। किसानों के क्रेडिट कार्ड की लिमिट अब 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन्य धान्य योजना चलाई जाएगी। योजना से देश के करीब 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। इसके तहत 100 ऐसे जिलों को कवर किया जाएगा जहां उत्पादन कम है। तुअर, उड़द, मसूर आदि दालों के लिए 6 साल का स्पेशल मिशन चलाया जाएगा। हमारी सरकार ने टैक्स की सीमा 7 लाख रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 12 लाख वार्षिक कर दिया है। यह अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक है। सरकार का मकसद मिडिल क्लास परिवार के खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना है। जब हर माह 1 लाख कमाने वाले व्यक्ति से सरकार कोई इनकम टैक्स नहीं लेगी, तो उस व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा बचेगा, और जब उसके पास ज्यादा पैसा होगा तो वह खर्च भी ज्यादा करेगा। इससे मिडिल क्लास परिवारों के खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और इससे देश की नई अर्थव्यवस्था में एक तेजी दिखाई देगी। माननीय उपसभापति महोदय जी, किराए से होने वाले आय पर टीडीएस की सीमा 2,40,000 रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपया कर दिया गया है। अब किराए से होने वाली 6 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली आय पर दुगनी छूट मिलेगी। छूट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। विकसित भारत के युग में युवा ही हमको लेकर जाएंगे, इसलिए हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा ऐलान युवाओं को लेकर किया है। जब तक युवा तैयार नहीं होंगे, तब तक भारत कभी विकसित नहीं बन पाएगा, सुपर पावर नहीं बन पाएगा। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का नया फंड जारी की है, जिससे नौकरियों के नए अवसर खुलेंगे। माननीय उपसभापति महोदय जी, जिज्ञासा, नवाचार और युवा मस्तिष्कों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए आगामी 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। 23 IIT में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 100% की वृद्धि हुई है, जो विगत 10 वर्षों में 65,000 से बढ़कर 1.35 लाख हो गई है। वर्ष 2014 के पश्चात शुरू की गई 5 IIT में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा,
ताकि 6,500 विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सुविधाजनक बनाया जा सके। मोदी सरकार की, एनडीए सरकार की ऐसी तमाम योजनाओं को देखते हुए मेरी कलम ने लिखा, सबका साथ सबका विकास की तस्वीर खींच दिया, सबका साथ सबका विकास की तस्वीर खींच दिया, विकसित भारत की तकदीर खींच दिया, विरासत वाले देखते रह गए, विरासत वाले देखते रह गए, एक चाय वाले ने बड़ी लकीर खींच दिया, एक चाय वाले ने बड़ी लकीर खींच दिया। माननीय उपसभापति महोदय जी, यह आम बजट बेहद खास बजट है, नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला बजट है। मैं इसकी भूरी भूरी पुनः प्रशंसा करती हूं और अंततः 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। कहना चाहूंगी, मोदी सरकार को की नीतियों और उपलब्धियों को देखते हुए विपक्षियों का सिंहासन हिल गया, विपक्षियों का सिंहासन हिल गया, चहुं ओर कमल ही कमल खिल गया, विपक्षियों का सिंहासन हिल गया, चहुं ओर कमल ही कमल खिल गया। मोदी की ऐसी लाजवाब नीतियां, मोदी की ऐसी लाजवाब नीतियां, किसी का टूटा घमंड किसी को जीरो मिल गया, किसी का टूटा घमंड किसी को जीरो मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री राम जी, माननीय श्री राम जी 5 मिनट। धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे बजट 2025-26 की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। मान्यवर, देश में इस बजट से लगभग 70% लोगों को निराशा ही हाथ लगी। बजट का देश की जनता बेसब्री से इंतजार करती है कि बजट के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री तमाम तरह की रियायतें गरीब जनता को देने वाली होंगी। टीवी, फ्रिज, खाने वाली सामान, आवश्यक वस्तुएं, दाल, आटा, चावल, दूध, दही, बच्चों की किताबें, पेंसिल, पेन, कपड़ा, खाद, पेस्टिसाइड, बीज, ये सारी चीजें सस्ती होंगी, पेट्रोल सस्ता होगा। लेकिन जल्दी ही उनको निराशा हाथ लगी जब इस तरह की कोई भी रियायतें माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी गरीबों के लिए नहीं ला पाई। मानव, देश में लगभग 70 करोड़ लोग अलग अलग सेक्टरों में मजदूरी करते हैं। इनकी मजदूरी 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक होती है और 300 रुपए में एक गरीब व्यक्ति क्या करेगा? इस देश में लंबे अरसे तक कांग्रेस ने भी राज किया और बीजेपी कर रही। इन लोगों ने कहा हम गरीबी खत्म करेंगे, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने गरीबी खत्म नहीं करी और 300 रुपए आज भी मिलते हैं। 15 साल पहले भी मजदूर को 300 मिल रहे थे और आज भी मजदूर को 300 रुपए मिलते हैं, लेकिन महंगाई आसमान पर जाती है। मान्यवर, 2011 सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के अनुसार 56% गरीब ग्रामीण परिवारों के पास कोई खेती के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। वो लोग सिर्फ खेतिहर मजदूर बन के अपने जीवन यापन करते हैं। मैं माननीय सरकार से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सरकार के पास लगभग 40 लाख हेक्टेयर जमीन खेती के वाली खाली पड़ी है। यह जमीन गरीबों और भूमिहीनों को 2-2 एकड़ सरकार अगर देती है तो कम से कम 1 करोड़ परिवार भारत के जो भूमिहीन लोग हैं वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं। साथ ही आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सरकार स्कूलों में जो मिड डे मील होता है उसमें बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता, उस फंड को भी सरकार बढ़ाने का काम करे। साथ ही प्राइवेट स्कूलों में और फीस में, किताबों में प्राइस हाइक हो रहा है, बच्चों की फीस बढ़ाई जा रही है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। इस पर भी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि SC/ST का जो फंड होता है, SC/ST का जो फंड है, डेवलपमेंट उनके खर्चा होना है, उनके शिक्षा पे खर्चा होना है, उनके रोजगार पे खर्चा होना है, लेकिन तमाम सरकारें उस SC/ST फंड को डाइवर्ट करके अन्य मदों में खर्च करती हैं। इस पर माननीय फाइनेंस मिनिस्टर रोक लगाएं कि जो फंड जो मद में खर्च होना है उसी मद में वो खर्च किया जाए। साथ ही मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि लंबे अरसे तक काफी दिनों से SC/ST के बच्चों को स्कॉलरशिप टाइम पे नहीं मिल रही और सरकारी स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर की वजह से तमाम SC/ST के जो गरीब बच्चे हैं वो एडमिशन नहीं ले पा रहे। अभी कई जगह पे देखने को मिला, IITs में देखने को मिला
कि गरीब बच्चे एडमिशन लेने में असमर्थ रहे। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि SC/ST के जो बच्चे जो गरीब लोग हैं उनकी फीस को फ्री किया जाए और साथ ही जो उनका स्कॉलरशिप होता है वो भी सरकार टाइम पर उनको देने का काम करे। और इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के अंदर रोजगार और इस देश को आर्थिक शक्ति के रूप में बनाने के लिए तमाम दस्तावेज लिखे, तमाम तरह के रिसर्च भी दिए और तमाम तरह की किताबें भी लिखी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने वॉल्यूम नंबर 3 में ये लिखा हुआ है कि इस देश के अंदर जो कृषि क्षेत्र है वो सरकार के अधीन रहना चाहिए और उसके साथ ही ये भी कहा कि बीमा क्षेत्र भी राष्ट्रीयकृत होना चाहिए। अगर आप बीमा को प्राइवेटाइजेशन कर दोगे 100% तो इस देश में बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा, देश जोखिम की तरफ बढ़ सकता है। इसलिए मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से कहूंगा कि इस पर भी पुनर्विचार करें और बाबा साहब की इस बात को भी ध्यान में रखें। और साथ ही सरकारी कर्मचारी लंबे अरसे से मांगते चला रहे हैं कि OPS लागू किया जाए, लेकिन OPS नहीं मिल रहा, उसके लिए NPS लाया गया, फिर UPS लाया गया, लेकिन सभी लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मैं माननीय सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि OPS को पुनः लागू किया जाए, उस पर कंसिडर किया जाए। साथ ही मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते में कहना चाहता हूं कि देश में हजारों करोड़ रुपया अलग अलग प्रदेशों की सरकारें टैक्स का जो पैसा होता है वो प्रचार में खर्च करती हैं। कहीं टीवी पे खर्चा हो रहा है, कहीं होर्डिंग में खर्चा हो रहा है, कहीं टीवी अखबारों में वो खर्चा किया जा रहा है, टैक्स का पैसा खर्चा किया जा रहा है अपने प्रचार प्रसार के लिए। उस पर रोक लगाई जाए और उस पैसे को इस देश के अंदर शिक्षा और गरीब बच्चों के ऊपर पढ़ाई के ऊपर लगाया जाए। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट में कहना चाहता हूं, एविएशन सेक्टर के अंदर एक लूट मची पड़ी है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि एविएशन सेक्टर के अंदर लूट को रोकने के लिए जिस तरह ट्राई के अंदर ट्राई रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया है, ऐसे एविएशन सेक्टर के अंदर भी एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए जो प्राइस हाइक को रोकने का काम करे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। माननीय सदस्य मिथिलेश कुमार जी। आपने आज मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमारे देश के माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट में हमारे सम्मानित नेता माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। महोदया, मैं आज यहाँ 2025-2026 के दूरदर्शी केंद्रीय बजट के प्रति गहरी प्रसन्नता करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये बजट पूरे देश की आशाओं को लेकर आया और ये उन अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरा है। ये स्पष्ट रूप से 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के प्रति सरकार की अटल प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा लाया गया बजट 2025-26 देश के विकास की मजबूत आधारशिला रखने वाला बजट है। मान्यवर, ये बजट गरीब लोगों, मध्यम वर्ग के लोगों, किसानों सहित आकांक्षी समाज के सपनों को पूरा करेगा। ये बजट एक स्थायी भविष्य के लिए है जो हरित ऊर्जा, हरित विकास, हरित बुनियादी ढांचे और युवाओं के लिए रोजगार को और प्रोत्साहित करेगा। मुझे विश्वास है कि सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली NDA सरकार को आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दृढ़ निश्चित करता है। बजट में कृषि को विकास का प्रमुख घटक मानते हुए उस पर विशेष जोर दिया गया। मैं उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर से आता हूं, जहां हमारी पुआया तहसील में कृषि में धान, गेहूं, गन्ना, आलू मुख्य रूप से उत्पादक हैं। तो वहां के किसानों से मेरी बात हुई, वो बहुत खुश हैं। उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और सिंचाई पर भंडारण अवसंरचना में सुधार के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की है। इसी के अंतर्गत जो सोलर पंप है उससे किसानों को विशेष राहत माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों को राहत दी गई है। इसके अतिरिक्त दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्ष का आत्मनिर्भर मिशन भी घोषित किया गया है। बजट में उच्च उत्पादकता वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन, कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष मिशन और सब्जियों व फलों के लिए एक विशेष कार्यक्रम जैसे कदमों का भी उल्लेख किया गया है। ये सभी पहल कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए
और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त मछली पालन क्षेत्र के लिए 2025 और 26 के बजट में कुल 2703.67 करोड़ का आवंटन किया गया है। बजट में भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सीज में मछली संसाधनों के सतत उपयोग के लिए एक सक्षम ढांचा स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई है, जिसमें विशेष रूप से अंडमान और निकोबार द्वीपों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री से निवेदन भी करूंगा कि लक्षद्वीप में जो बोटर से जिससे मछली उत्पादक मछली पकड़ने जाते हैं, उनको केरोसिन कई सालों से बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी बोटें खड़ी रहती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार से निवेदन है कि वहां पर केरोसिन उपलब्ध कराने का काम करें। इस पहल के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के बजट आवंटन में 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2025-26 के लिए 64% की अधिक महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। महोदया, इस बजट की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक वेतन भोगी वर्ग को आयकर में राहत प्रदान करना है। इस कदम के तहत 1 लाख रुपए प्रतिमाह तक की आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को कर में छूट दी गई है, जबकि अन्य करदाताओं पर कर भार में भी कमी की गई है। माननीय महोदया, इस पहल से उपभोग और निवेश का एक सकारात्मक चक्र प्रारंभ होने की उम्मीद है, जिससे भारत की आर्थिक वृद्धि को पुनर्जीवित किया जा सकता है। वर्ष 2025 में इसे 6.4% और वित्त वर्ष 2025-20 से 2026 में 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है। माननीय सदस्य प्लीज कंक्लूड। मेरे को 10 मिनट दिए गए थे, मुझे कई दिनों से तैयारी की है। तो 5 मिनट का ही आवंटन था। चलो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, अनुरोध करता हूं मैं आपसे, बढ़ा दीजिए समय जी। मेरा सूक्ष्म, लघु और मध्यम MSE के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है। व्यवसायों के विस्तार और दक्षता में सुधार के लिए MSME वर्गीकरण की निवेश और टर्नओवर सीमा को बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य व्यापार बढ़ाने में आसानी, भविष्य और तैयार कार्यबल तकनीकी अनुरूप की गुणवत्ता उत्पादन किया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत गरीबों को, किसानों को, हमारे देहात क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है। महोदया, वित्त मंत्री जी ने बजट में SC/ST महिला उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू करने का, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं SC समाज से आता हूं, तो मुझे एक मौका दे दीजिएगा। मैं तो सोच रहा 10 मिनट बोलूंगा। SC समाज पूरे देश में बिखरा पड़ा, कोई पूछने वाला नहीं था। जब से देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तब से SC को लगा है कि हमारी भी कोई सरकार है। मित्रों, अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ तक का टर्म लोन जो होगा, इस दायरे में 5 लाख महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के लोग आएंगे। एक मैं पुरानी आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक सरकार कांग्रेस हुआ करती थी, तब अनुसूचित जाति के लोगों को अफवाह फैला करके गुमराह करते थे कि हम तुम्हें 50% छूट दे रहे हैं, 50% छूट दे रहे हैं। लेकिन छूट कितनी थी? मात्र 5,000 रुपया की, जिसमें भैंस, बकरी पालन, आपके जल्लब, बुग्गी दे करके उनको ठगने का काम कांग्रेस सरकार की नीति करती थी। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने SC/ST अनुसूचित जाति की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 2 करोड़ तक का लोन देने का काम किया। एक बात कहकर खत्म करूंगा, मैंने देश में कई स्टेट में भ्रमण किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान कार्ड जो चलाई गई, 1 मिनट बस 1 मिनट दे दीजिए। एक पश्चिम बंगाल है जहां पर आयुष्मान कार्ड लागू नहीं किए जाते, नल से जल की योजना लागू नहीं की गई, और कांग्रेस की सेकंड पार्ट है, कांग्रेस से निकल के वो पार्टी बनी और उसने गरीबों का दमन किया। ऐसे ही केरल में भी नल से जल नहीं दिया गया। अभी आपने देखा होगा, सफाई का मुद्दा
माननीय प्रधानमंत्री ने देश भर में चलाया, लेकिन दिल्ली की सरकार में सफाई नहीं हुई। हमारी दिल्ली की जनता को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि सफाई के नाम पर, आयुष्मान कार्ड के नाम पर उन्होंने उन लोगों को बाहर करने का काम किया जो जनता का खून चूसते थे। एक बोतल साथ एक बोतल शराब फ्री दिया करते थे, लेकिन नालियों की सफाई नहीं करते थे। अब मैं अंत में इतना कहूंगा, हमारे देश की माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लोक महत्व का बजट देश को दिया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नॉट प्रेजेंट श्री बिजलाल जी। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। उपसभापति महोदया, मुझे आपने मौका दिया है बजट पर बात करने का। माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट में कहा है उसमें प्रथम है कृषि, दूसरा MSME, तीसरा है निवेश, चौथा एक्सपोर्ट। मैं चूंकि समय आपने बहुत कम दिया है, अभी देखा 10 मिनट था, अब हो गया 6 मिनट, फिर 5 मिनट। मैं अनुरोध करूंगा थोड़ा समय दे दीजिएगा। तो प्रथम इंजन है कृषि। महोदया, कृषि जो है ये 60 करोड़ लोग इससे जुड़े हैं। अगर मजदूरों को जोड़ लिया जाए तो उससे कहीं संख्या होती है, इसलिए कृषि का बहुत बड़ा रोल है और इसीलिए कृषि को रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और हमारी GDP में 19% सहयोग होता है कृषि का। कांग्रेस के समय में कृषि पर ध्यान नहीं दिया गया, नेगलेक्ट किया गया, लेकिन जब मोदी जी आए तो 2018 में पहले लागू हुई कृषि सम्मान निधि। इन लोगों ने क्यों नहीं किया? 60 वर्ष तक शासन किया। महोदया, ये 6,000 रुपए की बात नहीं है। ये 6,000 रुपए से इस देश का दलित आदिवासी भूमिहीन होने से बच गया। उसके पास 5 बिस्सा जमीन है, 10 बिस्सा जमीन है, वो कर नहीं पाता था, करता था तो मजदूरी। लोग कहते क्या करेगा इस जमीन को? और उसके बाद आज उस 5 बिस्सा पर उसको 6,000 रुपया मिलता है, जिसको वो पैदा नहीं कर सकता था। हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में एक सरकार आई 2004 में, समाजवादी पार्टी की। उन्होंने एक बिल मूव किया और कहा जमीन बेचने में दलित की DM की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। ये परमिशन की जरूरत क्यों है? जिससे दबंग लोग दलितों आदिवासियों की जमीन, पिछड़ों की जमीन खरीद ना लें। उसके बाद उसका इतना विरोध हुआ कि वो बिल समाजवादी पार्टी सरकार पास नहीं कर पाई, अदरवाइज आज वो सब भूमिहीन हो गए होते। तो ये जहां 6,000 रुपया सहायता है, और सबसे बड़ी बात है इस 6,000 रुपये ने सम्मान निधि ने भूमिहीन होने से बचा लिया। सभापति महोदया, इसके बाद कृषि के लिए यूरिया में हम लोग आत्मनिर्भर भाई नामरूप मेला लगा है। हमारे प्रदेश में गोरखपुर में एक फैक्ट्री थी, 68 में लगी, 90 में बंद हो गई। उसको मोदी जी ने दोबारा किया, दोबारा वो आज उत्पादन कर रही है। तो इस तरह से तमाम सुविधाएं दी गई कृषि को, और कृषि के इसमें आज किसान हमारा खुशहाल हो रहा है। महोदया, मोदी जी के प्रयास से 75th जो जनरल असेंबली थी, उसने वर्ष 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया। मिलेट वो फूड है, सावा, कोदो, मड़ुआ, काकुन, ज्वार, बाजरा, ये गरीबों का खाना होता था, आज वो सुपर फूड हो गया है। और सुपर फूड को पैदा करने का सबसे ज्यादा एरिड एरिया में होता है, जहां सिंचाई की साधन नहीं है, कम है। तो आज उनका मिलेट सुपर फूड है और मार्केट में इसकी सबसे बड़ी कीमत है। सभापति महोदय, 38.4% मिलेट हम पैदा करते हैं, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब कांग्रेस के आता हूं। कांग्रेस में क्या हुआ था? PL 480 1954 में लाया था, वो लाल गेहूं। महोदय, अभी हमारे दीपक प्रकाश जी कह रहे थे, झारखंड में गरीबी इतना है लोग कटहल का बीज खाते हैं। आप तो उसी क्षेत्र के रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में मैं जानता हूं, मैं सभापति में बताना चाहता हूं, गोबरेला अनाज खाते थे। जो जानवर जब दवाई होती थी बैल खा लेता था, उसके गोबर से जो अनाज निकलता था साबुत, उसको धुल कर लोग खाते थे उत्तर प्रदेश में। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो कांग्रेस के जमाने में गोबरेला अनाज, साखू के बीज, ये तमाम चीजें लोग खाते थे। और ये PL 480 1969 तक जारी रहा। अमेरिका चड्ढी गांठता था
अपने हम इंडिपेंडेंट डिसीजन जब कांग्रेस ली थी, कहते थे तुमको अनाज नहीं देंगे। आज इतना अनाज पैदा हो रहा है, 80 करोड़ से 80 लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया के पेट भरने की क्षमता हमारी है। और उस PL 480 की एक सौगात कांग्रेस की अभी बाकी है, और वो सौगात है कांग्रेस ग्रास, पार्थेनियम। पूरे देश में वो उगता है, उससे अस्थमा पैदा होता है, एलर्जी पैदा होता है। तो कांग्रेस का PL 480 की सौगात आज भी बीमारी के रूप में प्रसिद्ध है। ये थी कांग्रेस का जो किसानों का इन्होंने किया। दूसरा महोदया, दलहन। दलहन ये प्रोटीन का सबसे मुख्य साधन है ग्रामीण क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हमारा उत्तर प्रदेश दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, और अभी योगी जी के सरकार में 37% दलहन का उत्पादन बढ़ा है। मध्य प्रदेश वहां बढ़ा, महोदया 3 मिनट लूंगा मैं। और ये हाल है कि आज हमारा बुंदेलखंड सबसे ज्यादा दाल का कटोरा हम कहेंगे सिंचाई का साधन नहीं था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब बेतवा और केन नदी का लिंक की शुरुआत की, उसको मोदी जी ने पूरा किया। और आज बुंदेलखंड में जब से सिंचाई की सुविधा हुई है, आज वो धन धान से भर गया है। वहां पर आपका डिफेंस कॉरिडोर है। और एक समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो आज हम दाल प्रोडक्शन कर रहे हैं, खाद्य में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। वो डकैत पैदा करते थे वहां पर, उस क्षेत्र में, चाहे चंबल हो चाहे पाठा हो। डकैत जो थे वो इसलिए पालती थी सरकार वहां की, जो समाजवादी पार्टी सरकार थी, कि वो तय करते थे किसको वोट देना है। तो वो डकैत पैदा करते थे। उन्हीं डकैतों को, परिवारजनों को, एक बांदा का डकैत था, उस समय माही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था, वो मारा गया। महोदया 2 मिनट लूंगा, को ज्यादा नहीं लूंगा। और उसके भाई को समाजवादी पार्टी सरकार संसद सदस्य बनाया, भाई भतीजों को बनाया उन्होंने MLA। तो मेरा कहना है वो समय की सरकारें डकैत पैदा करती थी, और हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन समय बड़ा लिमिटेड है। तो मैं इस बजट का बहुत बहुत प्रशंसक हूं। इसका मैं आपके माध्यम से मैं बधाई देता हूं माननीय सीता निर्मल जी को। और ये बजट 2047 का पूर्ण विकसित भारत का ये रोड मैप है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। श्रीमती महुआ मांझी। थैंक यू ऑनरेबल वाइस चेयरमैन मैम। 5 मिनट थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि इधर भी आपने दिया है। झारखंड का मैं अकेले प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर और ऑनरेबल निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 ने व्यापक आलोचना को भी जन्म दिया है। केंद्र सरकार के सबका साथ सबका विकास के दावे के बावजूद बजट भाजपा शासित राज्यों का पक्ष लेता हुआ और झारखंड जैसे विपक्ष शासित राज्यों में राशि और परियोजनाओं के आवंटन में भेदभाव करता हुआ साफ प्रतीत होता है। झारखंड भारत में सबसे समृद्ध संसाधन युक्त राज्यों में से एक है, जो कोयला, आयरन ओर और अन्य खनिजों के विशाल भंडार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बावजूद इस बजट में राज्य की बड़े पैमाने पर अनदेखी की गई है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा कोयले की रॉयल्टी के जो देने थे 1,36,000 करोड़, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बार बार वहां पर पत्र लिखने के बावजूद अभी तक वो पैसा नहीं दिया गया है, और इस बजट में भी उसका कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि उस पैसे से हमारे राज्य में बहुत काम हो सकता है। और माननीय हेमंत सोरेन जी का जो सपना है अपने समृद्ध राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का, वो पूरा हो सकता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द उस राशि का भुगतान कर दिया जाए। झारखंड में धनबाद में आप जानते होंगे कि झरिया में कोयले पर आग लगी हुई है जमीन के नीचे सालों से। उसके लिए मुझे लगता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक बजट होना चाहिए कि करकट्टा, खोलियरी, झरिया, जहां बहुमूल्य कोयला देश का जलकर राख हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, लोग वहां से माइग्रेट कर रहे हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ तक कि देश की जो राजधानी
दिल्ली है, दिल्ली में भी जो पॉल्यूशन के लिए पूरे देश में इस बात की चर्चा है, इसके लिए भी मुझे लगता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट बजट अलग से अलोकेट होना चाहिए। गरीब जनता का सहारा में डूबे पैसों को वापस दिलाने में केंद्र सरकार झारखंड राज्य को बिल्कुल मदद नहीं कर रही है। सहारा ने न जाने कितने गरीबों को बेसहारा कर दिया है। सहारा में झारखंड के लोगों के लगभग 2500 करोड़ की राशि डूबने की आशंका है। 3 लाख से ज्यादा छोटे बड़े निवेशकों का पैसा फंसे होने का अनुमान है। धनबाद के लगभग 1872 लोगों ने राज्य सरकार से शिकायत की है। राज्य सरकार लगातार केंद्रीय रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर पैसे वापस दिलाने की मांग कर रही है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद केंद्र सरकार मौन है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड को 2,11,422 करोड़ का आवंटन दिया गया था, लेकिन जनवरी 2025 तक केवल 29,517 करोड़ ही दिया गया केंद्र सरकार द्वारा, यानी स्वीकृत राशि का 14% ही जारी किया गया। कई ऐसे इलाके हैं जहां हमारे राज्य में जहां जल की भयानक समस्या है, उसकी किल्लत है, हाहाकार मचा हुआ है। झारखंड का एक जिला है गांडे, जो बिहार से सटा, एक विधानसभा क्षेत्र है गांडे जो बिहार से सटा हुआ है। पिछले साल मई के महीने में मैं वहां गई थी तो मैंने देखा, एक व्यक्ति ने कहा गांव का कि मैंने 10 दिन तक वो स्नान नहीं किया था। वहां पर जितने भी जल स्रोत है लगभग सब सूख चुके हैं, चापानल, कुआं, कोई काम नहीं कर रहा है। इसलिए जल जीवन मिशन के लिए जो स्वीकृत राशि है वो अविलंब हमारे राज्य को दिया जाए। एनसीआरबी का 2022 का डेटा उठाकर देख ले, भारत में आत्महत्या दर 12.4 प्रति 1 लाख के साथ दुनिया में सबसे अधिक है और मानसिक विकारों का इलाज प्राप्त करने में 83% की कमी है, जो चिंताजनक है। इसके बावजूद मानसिक स्वास्थ्य को पर्याप्त वित्तीय समर्थन नहीं मिला। युवाओं और छात्रों में डिप्रेशन और आत्महत्या खत्म करने के लिए व्यापक स्वास्थ्य नीति और बड़े बजट की आवश्यकता है। झारखंड में रांची स्थित CIP भारत का सबसे पुराने और प्रतिष्ठित मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में से एक है, लेकिन इस वर्ष के बजट में इसे पूरी तरह से इसे नजरअंदाज किया गया है। यह संस्थान अपने वातावरण और जलवायु परिस्थितियों की वजह से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए आदर्श माना जाता है, फिर भी केंद्र सरकार इसकी उपेक्षा कर रही है। जहां आपको पता होगा कि तेजपुर स्थित LGBRIMH को करोड़ों रुपए आवंटित किए गए हैं, वही CIP रांची की उपेक्षा की गई है। यह मानसिक स्वास्थ्य सेवा के संसाधनों के असमान वितरण पर गंभीर सवाल खड़ा करता है और गैर भाजपा शासित प्रदेशों के साथ पक्षपात करने का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस बार के बजट में ऐसा प्रस्तावित है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के तहत भारत सरकार देश के प्रमुख कंपनियों के साथ मिलकर अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करेगी। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 5,000 प्रति माह का भत्ता मिलने की बात कही गई है, जिसमें 4500 रुपए प्रति माह सरकार देगी और 500 प्रति माह कंपनी देगी अपनी तरफ से। यहाँ इस बात की तरफ ध्यान दिया जाना जरूरी है कि 500 रुपए प्रति माह जो कंपनियां देंगी वह उनके पूर्व निर्धारित CSR से जाएगा, यानी इस तरह अगले 5 वर्षों में अपने CSR के मद में सीधे 500 करोड़ रुपए की कटौती कर दी जाएगी। यानी यह योजना पहले से चल रहे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कीमत पर भाजपा सरकार का अपना विज्ञापन है। इस तरह शेष 4500 रुपए प्रति माह किस मद से देने वाली है यह भी स्पष्ट नहीं है। बहुत संभव है वह भी किसी पूर्व निर्धारित बजट का डायवर्शन है। अतः इस स्तर पर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और इस योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस इलाके में कंपनियां काम करती हैं वहां के पॉल्यूशन से निपटने की जिम्मेदारियां कंपनियां उठाती हैं। प्रोजेक्ट इफेक्टेड एरिया में CSR फंड का इस्तेमाल आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, गरीबी उन्मूलन, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाता है, जिन्हें सरकार अपनी तरफ से इंटर्नशिप मद में खर्च करने को बाध्य कर रही है। जबकि सच तो यह है कि इंटर्नशिप के बाद बस 2 मिनट कोई जॉब गारंटी नहीं है, जैसा कि मुझे मेरे सवाल पर माननीय मंत्री जी ने कहा था। ऐसे में हो सकता है कि युवा बाद में बाहर नौकरी के लिए चले जाए और स्थानीय लोगों को CSR मद से मिलने वाले लाभ भी ना मिले। कहीं ऐसा ना हो कि 6 महीने से साल भर के लिए ट्रेनिंग प्राप्त युवा अग्निवीर से बहाल हुए युवाओं की तरह ठगा सा महसूस करे, जबकि अग्निवीर में तो फिर भी 3 साल की नौकरी है। मैं 2 पंक्ति बोलकर खत्म कर रही हूँ कि किसी ने कहा है, ठीक ही कहा है, कि वादों की गठरी उठाए फिरते हैं, हक की बातों को दबाए फिरते हैं, रोजगार के नाम पर मिलती है तालीम और सपनों को बहलाए फिरते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री सतनाम सिंह संधू जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मुझे
इस सदन में 1 साल पूरा हो गया इस बजट सेशन के साथ, और मुझे दूसरी बार बोलने का समय मिला है। मैंने तैयारी 15 मिनट की थी, 10 मिनट का अंदाजा था, लेकिन 5 मिनट मिले हैं, सभी का समय कटा है और शायरो शायरी का माहौल भी है। तो मैं एक शेर अपनी लीडरशिप के धन्यवाद के लिए बोलना चाहूँगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा मेरे, मगर फिर भी कम निकले, कम निकले। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं अब तक के सबसे इंक्लूसिव बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये बजट सिर्फ एक फाइनेंशियल दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारे सर्वोच्च नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन डॉक्यूमेंट है। मैं शिक्षा क्षेत्र से आता हूं और ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब एलिमेंट्री या स्कूल एजुकेशन को 61% बजट एलोकेट किया गया है, और मैं समझता हूं कि इससे भारत के फ्यूचर की नींव मजबूत होगी और विकसित भारत और तेजी से विकसित भारत बनेगा। मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की टॉप पोजीशंस पर भारतीय प्रतिभा विराजमान है। ज्यादातर टॉप इंडस्ट्री लीडर्स, आईआईटीज और हमारी भारतीय संस्थानों के एलुमनी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तकनीकी शिक्षा के नए सूरज को उगाने का संकल्प लिया है। पिछले 10 वर्षों में आईआईटीज में छात्रों की संख्या 100% बढ़कर 1,35,000 हो गई है। यही वे नवाचार के बीज हैं जो भविष्य में कटिंग एज रिसर्च को जन्म देंगे और भारत को वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की ओर अग्रसर करेंगे। आज गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब भारत को ग्लोबल एआई समिट पेरिस का सह-अध्यक्ष बनाया जाता है। हमने देखा जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने मोदी जी के विजन को स्वीकारा ही नहीं, बल्कि दुनिया को उससे सीख लेने के लिए भी कहा। यह गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज ग्लोबल एआई समिट की प्रेसिडेंसी भारत लेकर आ रहे हैं। 3 एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की सफलता के बाद अब 500 करोड़ की लागत से एक और अनूठा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है, जो शिक्षा जगत में एआई ड्रिवन पर्सनलाइज्ड लर्निंग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैम, आज पूरी दुनिया की नजर भारत की प्रगति पर है, लेकिन इन दिनों भारत दुनिया के सबसे विशाल समागम कुंभ की वजह से ज्यादा चर्चा में है। देश में महाकुंभ का विशाल आयोजन हो रहा है। देश दुनिया से 40 करोड़ लोग पवित्र स्नान करने के लिए आ रहे हैं और इसमें से 15 लाख से ज्यादा तो विदेशी हैं। सर, कुछ लोग इतने बड़े पर्व को एक इकोनॉमिक चश्मे से भी देखते हैं। उनका अनुमान है कि महाकुंभ से 3.25 लाख करोड़ की कमाई होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारा देश सिर्फ आर्थिकता से नहीं चलता, हमारा देश आस्था से भी चलता है। बढ़िया उपसभापति जी, लेकिन दुख की बात है कि जिस पवित्र जल को हम अमृत समझकर डुबकी लगाते हैं, कुछ लोग उसको गंदा पानी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उससे पाप नहीं धुलते या गरीबी नहीं मिटती। ऐसा कहना केवल महाकुंभ में आए 40 करोड़ श्रद्धालुओं के मन को ठेस नहीं पहुंचाता, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों को भी दुखी करता है। जब आस्था का मजाक उड़ाया जाए तो दिल दुखता है, और जब मजाक उड़ाने वाले लोग इसी सदन में बैठे हों तो दुख के साथ निराशा भी होती है। चेयरमैन साहब, अब इसके लिए चाहे जितनी भी सफाइयां दी जाएं, ये पाप धुलने वाले नहीं। इतिहास गवाह है कि जब जब आस्था आहत हुई है तब तब बड़े नुकसान हुए और देश कमजोर हुआ है। मैं पंजाब से आता हूं और पंजाब के एक बहुत ही संजीदा शायर सुरजीत पात्र जी की कुछ लाइनें आपके साथ साझा करना चाहूंगा। पात्र साहब ने लिखा कि कुछ किहा तां हनेरा जरेगा किवें, कुछ किहा तां हनेरा जरेगा किवें, चुप रहा तां शमादान की कहणगे।
उप चेयरमैन साहब, मैं पंजाब से आता हूं और हमारी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र श्री हरमंदिर साहब है। इसके 4 दरवाजे सब धर्मों का सम्मान करते हैं, जहां पर हर घड़ी सरबत के भले की अरदास होती है। लेकिन इस पवित्र स्थान पर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ समय फौज भेजते हुए तोपों के साथ हमला किया गया। साथ ही पवित्र सरोवर को निर्दोष लोगों के खून से लाल कर दिया गया और इसे सिर्फ लैंड बजट से देखा गया। अगर इसको आस्था से देखा जाता, सुनिए एक मिनट, बहुत स्पीकर है और ये कि जल्दी इसको खत्म करना। इस हमले में माननीय वित्त मंत्री जी आ जाएंगी। इस समय दौरान 25,000 से ज्यादा नौजवानों को घरों से उठा लिया गया और वो लापता। श्रीमती सुनेत्रा पवार। नहीं, तुम ही बात बोल रहे हो, हैं? हाँ, आप बोलिए, माइक आपका आना है। माननीय उपसभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति जी, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत जनरल बजट का स्वागत तथा समर्थन करती हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को उनके लगातार 8वें बजट के लिए बधाई देती हूं। मैं इस बजट में किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, उद्यमियों, महिलाओं, युवाओं, छात्राओं और आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी की सराहना करती हूं तथा आशा करती हूं कि इस बजट की सभी को विकास के अवसर प्रदान करेगा। माननीय सभापति जी, उपसभापति जी और राज्यसभा के सम्मानित सदस्यगण, मैं आज आपके समक्ष जिम्मेदारी और विनम्रता की गहरी भावना के साथ खड़ी हूं, क्योंकि मैं इस प्रतिष्ठित सदन में अपना पहला भाषण दे रही हूं। मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मैं आप सबके सामने अपनी बात रख रही हूं। माननीय सभापति जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार ने पूरे विश्व को एहसास दिलाया है कि भारत एक शक्तिशाली देश है। आज पूरा विश्व नए भारत की नई उड़ान के इस अमृतकाल का सामना कर रहा है। माननीय सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए बहुत शानदार बजट पेश किया है। यह एक ड्रीम बजट है जो नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त बनाकर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्रदान करता है। कर छूट में वृद्धि ऐतिहासिक है। इससे क्रय शक्ति बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी और मजबूत अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस बजट से निश्चित रूप से हमारे नागरिकों का लाभ मिलेगा। यह भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जाएंगे। माननीय सभापति जी, यह बजट हमारे बाजारों को ऊर्जा देगा, क्रय शक्ति बढ़ाएगा और रोजगार सृजन करेगा। विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र को लाभ पहुंचाएगा। माननीय सभापति जी, इस बजट में प्रधानमंत्री अनाज उत्पादन योजना के तहत 100 जिलों में कृषि उत्पादकता, भंडारण सुविधा, सिंचाई और ऋण सेवाओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस पहल से महाराष्ट्र को बहुत लाभ मिलने की उम्मीद है। कपास और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के संबंध में निर्णय से भी राज्य को लाभ मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने के निर्णय का मैं स्वागत करती हूं। इससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा। मुझे उम्मीद है कि पुणे जिला भी इस 100 जिलों में शामिल किया जाएगा। माननीय सभापति जी, स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ रुपए की ऋण सीमा के साथ यह बजट नए व्यवसायों के विकास को गति देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। माननीय सभापति जी, बुनियादी ढांचे के मुद्दे पर मैं नई नीति रूपरेखा और बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना को जारी रखने का स्वागत करती हूं। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी परियोजनाएं निजी निवेश को आकर्षित करेगी और रोजगार सृजन बढ़ावा देगी। सभापति जी, यह बजट
दीर्घकालिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है, बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देता है तथा कृषि स्टार्टअप्स और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। यह बजट निश्चित रूप से कई क्षेत्रों में महाराष्ट्र की प्रगति को मजबूत करेगा और मुझे उम्मीद है कि माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय श्री अजित पवार और श्री माननीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र देश की प्रगति में अग्रणी राज्य बनेगा। सभापति जी, इस बजट में 52 प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित करने की नीति की भी घोषणा की गई है। यह पहल देश को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि माननीय श्री फडणवीस जी, माननीय श्री पवार जी और माननीय श्री शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र भारत को विकसित राष्ट्र और आर्थिक महाशक्ति बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का पूरा समर्थन करेगा। सभापति जी, इस बजट में सरकार ने उड़ान योजना को 120 स्थानों पर लागू करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। महाराष्ट्र के पुणे जिले के पुरंदर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होगा। सभापति जी, दूषित जल सबसे बड़ा स्वास्थ्य जोखिम है। यह जीवन की गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों खतरे में डालता है। पुणे में मुळा मुठा नदी प्रदूषण के लिए सबसे संवेदनशील जल निकायों में से एक है। जयकांचन योजना के तहत मुळा मुठा नदी संरक्षण के लिए 230 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुझे आशा है कि इससे मुळा मुठा नदी को साफ करने में मदद मिलेगी। सभापति जी, पुणे में यातायात की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुधार की जरूरत है। इस बजट में पुणे मेट्रो के लिए 837 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे मेट्रो को निर्माण की तेजी आएगी। समाप्त करिए, साथ ही इस समस्या का छुटकारा पाने के लिए इस पास का विकास जरूर होगा। सभापति जी, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के कृषि उत्पादकता उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार जल संकट वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कर रही है। इस बजट में महाराष्ट्र के लिए ऊर्जा संरक्षण और लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के लिए 86.44 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माननीय, मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहती हूं कि इस राशि को बढ़ाया जाए ताकि कृषि सिंचाई में सुधार हो सके। सभापति जी, विकसित भारत के लिए निर्माण के लिए विकसित राज्यों का होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद मैडम। महाराष्ट्र में पहले ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन सुविधाएं अपर्याप्त थी, लेकिन अब इसमें काफी प्रगति हुई है। महाराष्ट्र सरकार कई सड़क विकास योजनाएं चल रही है। इस बजट में महाराष्ट्र में ग्रामीण परिवहन को बेहतर बनाने में 683.51 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस राशि को बढ़ाने की जरूरत है। धन्यवाद मैम। मैं आपको माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी के इस राशि बढ़ाने का अनुरोध करती हूँ। सभापति जी, मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार में विभिन्न बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए पूर्ण समर्थन प्रदान कर। 26 So I want to begin with the comment passed by one of the senior most member in the opposition that this budget doesn't have a philosophy,